to grace the presence of you all in this PCM being conducted on the theme Women on Wednesday, organized by CIRC, ICI. I, CA Divya Chandra from Prayagraj. I'm highly honored and feel privileged to have this opportunity to be a part of this wonderful series. The theme of WOW series is a great initiative to give the opportunity to female CAs to inculcate their overall personality. It helps them to improve, interact with each other. It has given a wonderful platform to them so that they can interact with each other and inculcate leadership qualities amongst them. And it also helps all of us to boost our self-confidence. With the able guidance, support, and leadership of Atul Mehrotra Sir, Chairman CIRC, this initiative has reached new heights with increased participation of female CAs day by day from all over India. So I would like to express my heartfelt gratitude to all those who are sincerely committed towards the success of this series. With these words, I heartily welcome our Chairman CIRC, Atul Mehrotra Sir, for his welcome address, who is well-recognized figure between all of us. He's well known for his administration, wonderful administration and leadership, and his commitment and dedication towards speakers, Vinita ji from Agra, Swarnim Gupta ji from Kanpur, and very young member from Meerut, Saloni Gupta ji, who will be delivering vote of thanks at the end. Very good afternoon to all of you. As said by Divya ji, that it was in our mind that if we go through the percentage of female members, I think they are around 40% of our practicing members. So last year we thought that we should promote our female members because they don't come forward in our academic programs. Considering this, we designed a theme, WOW, Women on Wednesday. And as said by Divya ji and a few other members, I am receiving regularly phone calls from our female members and from various places. Sir, I have to participate. मुझे भी कुछ करना है. क्या है ये WOW सीरीज? तो मैं सबको बताता हूँ और कहता हूँ कि बेटा तुम अपने हिसाब से जो कुछ भी कर पाओ उसमें अपने CIRC के मेंबर्स के लिए, और मेंबर्स तो हमारे कहीं से भी ज्वाइन कर लेते हैं, पूरे इंडिया से ज्वाइन कर लेते हैं. आपके अंदर जो टैलेंट है, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, बस वो उसको बाहर कैसे निकालना है, इस प्रयास में हमारी पूरी टीम, मेरा प्रयास था और उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. Before coming on the today's subject, I just wanted to share 2-3 very important things with all of you. That we all know that we celebrate the CA Day on the 1st day of July, and this will be the 74th CA Day, and our Indian government is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, and our ICI along with we all chartered accountants are also part of that. And considering the idea behind this Azadi Ka Amrit Mahotsav, we have also planned 75 programs for 75 days, which started from the 2nd day of June, and it will continue till 15th day of August. So you all are welcome for any contribution towards our fraternity. आप सभी लोगों को CA Day की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां. सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने प्रोफेशन को और अपने इंस्टीट्यूट को और ऊंचाई पे ले जाने के लिए जो भी सहयोग कर सकते हैं उसमें सहयोग करिए. 2 days back there was a MSME International Day, and if you go through your WhatsApp messages, you will find that each and every branch and every place where we have few chartered accountants, they celebrated, they managed to celebrate this International MSME Day. And MSME is a field of future of the profession. I think so. If you study, if we learn something, then it may be a good professional opportunity for all of us. Another last thing,
there is a mega event which is scheduled from 18th November to 21st November at Mumbai Geo Trade Center, and it is called as World Congress of Accountants. 118 साल के बाद भारतवर्ष को और हमारी सीए इंस्टीट्यूट को ये मौका मिला है इस प्रोग्राम को आयोजित करने का, और बहुत बड़ी प्रोफेशन की बड़ी पिक्चर, बिग पिक्चर अगर हमें देखनी है तो मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि आप लोग फिजिकल मोड में जरूर इसको अटेंड करिए, और वहां पर वर्ल्ड के बहुत से प्रोफेशनल्स आएंगे, उनसे हमारी जो कोई भी नेटवर्किंग हो सकती है, हमारा प्रोफेशन 10-15 साल बाद कैसा होने वाला है, क्या हमको अपने अंदर चेंजेस करने हैं अपने को ग्रोथ में आने के लिए या इवन सर्वाइवल के लिए। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक मेगा इवेंट होगी। आप कह सकते हैं कि ये ओलंपिक्स है हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशन का। सो जरूर आप सब लोग प्रयत्न करिए कि वहां पर आप कैसे भी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 30 जून तक कुछ कंसेशनल रजिस्ट्रेशन फीस है। और उसी के साथ आज हमारे जो 2 स्पीकर हैं वो बहुत ही दोनों ही लर्नड स्पीकर हैं। विनीता अग्रवाल जी जो कि हमारा डिस्कस करेंगी शो कॉज नोटिस and how to prepare appeals under GST. And another speaker is a very young speaker from Kanpur, from my own city, Swarnim Gupta. He will be discussing on the very key points on the TDS and the amendments. As we know that there are few new sections in the TDS, so she will be explaining in detail. And I am sure that after today's VCM, both these topics will be covered very in depth, you can say in depth, and most of the queries will be resolved here today. So now I request MOC for further proceedings. Thank you. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. As sir said, this VCM will focus on 2 topics. First topic will be on show cause notice and how to prepare for GST appeals by eminent speaker C. Vinita Agarwal ji. And second topic is on amendment and TDS by C. Swarnim Gupta ji from Kanpur. The sessions will include more issues to address the full aspects of the topic. And I'm sure this VCM will enlighten us all. But before moving towards the technical session, I would like to express my heartfelt gratitude to C. Bindu Nigam ji, the session chairperson of this VCM, under whose guidance this session will be conducted smoothly and effectively. She's a very senior member from our profession and has devoted more than 30 years towards this profession. So we heartily welcome you, sir, ma'am, and request you for your opening remarks. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you. Namaskar. And मैं अपने सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कोलीग्स का जो भी कनेक्टेड हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी ये जो सीरीज शुरू हुई है वाव, यानी वुमेन ऑन वेडनेसडे, ये हमारी CIRC टीम का बहुत बड़ा एफर्ट है हमारी एम्पावरमेंट को बढ़ाने का, हमारी डेवलपमेंट का। जब 36 इयर्स पहले मैंने CA किया था, उस समय हार्डली बहुत कम लेडीज CA होती थी। मैं जब क्लास अटेंड करने जाती थी इंस्टीट्यूट में, तो 100-125 मेल स्टूडेंट से उन्हें मैं अकेली थी, फीमेल स्टूडेंट। तो सब मुझे बोलते थे, अरे लड़की कैसे कर सकती है, लड़की CA कैसे कर सकती है, नहीं कर सकती। आर्टिकलशिप लेने के लिए भी मुझे बहुत परेशान होना पड़ा, कितनी कंपनियों में गई, कोई कंपनी मुझे रखने को तैयार नहीं थी उस टाइम। लेकिन टाइम बदला, मेरे देखते आज जैसे मोहित्रा जी ने बताया कि 40% CA वुमेन प्रैक्टिसिंग है, और ये बहुत फख्र की बात है कि हमारे देश में जिस प्रोफेशन को ओनली फॉर मेन माना जाता था, उसमें सिर्फ वुमेन ही है। 40% ह्यूज नंबर। इंडिया में भी लेडीज पढ़ी लिखी 40% नहीं है, मतलब हमारे प्रोफेशन में 40% वुमेन काम कर रही हैं। और आज जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें हम सारी लेडीज हैं। मुझे बहुत गर्व होता है अपने पर और अपनी फीमेल कोलीग्स पर। हमारी CIRC टीम जिन्होंने वाव सीरीज बनाई है, मतलब प्लेटफॉर्म बनाया है सबके लिए, इसमें हम सब अपनी बात करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं, फिजिकली वर्चुअली एक दूसरे से मिल भी सकते हैं, अपने पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और फ्यूचर में भी अपनी सबकी डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज ये देख के कि हम सब एक दूसरे का इतना साथ दे रहे हैं, और मेरी हमेशा यही तमन्ना रहेगी कि हम आगे बढ़े प्रोफेशन में, और जब तक हम जिंदा रहें अपने आने वाली बच्चियों को खूब आशीर्वाद दें ताकि वो खूब आगे बढ़े। आज सीए वनीता अग्रवाल जी बोलेंगी जीएसटी के ऊपर। तो जीएसटी में उन्होंने अपील्स को देखना है और शो काज नोटिस का जवाब वगैरह बनाना है, तो वो मेरे ख्याल से हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दूसरा बोलेंगी हमारी स्वर्णिम गुप्ता जी। स्वर्णिम गुप्ता जी जो कानपुर से हैं, इनका टॉपिक है की पॉइंट्स ऑन टीडीएस अलोंग विद इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स। इस साल बाकी अमेंडमेंट्स तो हर साल होते ही हैं, ये भी होगा ही, ये अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरी हिसाब से है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का नया कंसेप्ट है सेक्शन 194S में। उसमें मैं इनसे प्रार्थना करूंगी कि अच्छे से एक्सप्लेन करें ताकि हम सब मेंबर्स को इसके बारे में व्यापक जानकारी हो जाए। और वैसे भी ये जो सेशन है बहुत नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और मेरी बेस्ट विशेस हैं कि आप बहुत तरक्की करें। और नमस्कार, धन्यवाद। Thanks a lot, ma'am, for your wonderful blessings. With these words, without taking much time, now I request our eminent speaker, Sri Vinita Agarwal ji, to take up our first technical session, which is on GST appeals. Thank you. Thank you, Divya ji. सबसे पहले, first of all, I like to say thank you to Atul sir and the CIRC for giving me such a golden opportunity to present my views on this platform, speaking in front of such a huge number of members. The members of this prestigious institute give me so much confidence and give me so much power. Thank you, sir, for giving me this opportunity. And this Wednesday wow series that have been started by sir is really appreciable. Females like us, जो कि टाइम की वजह से बाहर नहीं जा पाती हैं, they can attend the meeting online. वो सबसे ज्यादा बेस्ट है हमारे लिए. Without taking much time, I would like to start my session, that is show cause notices and how to prepare an appeal. As we all know, our GST is now a grown-up kid of 5-year-old on 1st July 2022. यानी कि परसों ही हमारे GST को आए हुए भी 5 साल हो जाएंगे. और as the kid grow up, his demand also start arising. Same as with the GST. As it now older, it starts sending SCN notices, that is show cause notices, demands also. तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये शो कॉज नोटिसेस होते क्या है. तो व्हाट इज शो कॉज नोटिसेस अंडर जीएसटी एक्ट 2017. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हम लेमन लैंग्वेज में देखें शो कॉज नोटिस का एक मीनिंग क्या है, एक डेफिनेशन क्या है जो कि हमारे जीएसटी एक्ट में लिखी हुई है. तो इट इज अ डॉक्यूमेंट served by the department as an opportunity to person to explain with reason as to why particular course of action should not be taken against him. No person can be proved guilty without given an opportunity of being heard. ठीक है, हम किसी भी पर्सन के ऊपर एकदम से एलिगेशंस नहीं लगा सकते. सबसे पहले डिपार्टमेंट जो है वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है सुनने के लिए कि आपका इस बारे में क्या कहना है. तो दैट नोटिस इज शो कॉज नोटिस. इट इज अ बेसिक एंड एब्सोल्युटली नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग इन द टैक्स सिस्टम. ये बहुत ही बेसिक है लेकिन नेसेसरी है. इसके बिना कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी आगे का डिमांड या कोई भी नोटिस जो है वो फॉरवर्ड नहीं होगी जब तक हमारे पास डिपार्टमेंट की तरफ से शो कॉज नोटिस नहीं आएगा. देयर आर मल्टीपल केसेस where show cause notice can be issued, जैसे कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के केसेस में आ जाता है. अगर हमारा रिफंड एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है तब भी दे सेंड द शो कॉज नोटिस. Under the GST Act 2017, specific provisions have been made in relevant section to issue show cause notices before passing any order or decision under relevant section. Show cause notice is mandatory requirement for raising any demand under GST Act 2017. ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है.
अगर डिपार्टमेंट कोई भी डिमांड रेज कर रहा है तो उसको शो कोज नोटिस पहले हमें सर्व करना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट हमको लिख के नहीं दे सकते कि आपके ऊपर इतने रुपए की डिमांड हमने निकाली है कि आपने रिटर्न्स लेट फाइल्स करी हैं या जो भी है, उसके लिए भी वो नोटिस हमें सेंड करता है कि आपकी रिटर्न्स पेंडिंग है, यू हैव टू फाइल द रिटर्न्स। एक्सेप्ट यहाँ पे कुछ केसेस हैं जैसे कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 and assessment of non-filer of return under section 62 of the act. SCN is the foundation on which adjudicating authority has to build a case. It is the document served on the taxable person asking him to explain with reason as to why a particular course of action should not be taken against him. Right? अभी आगे बढ़ते हैं हम। In SCN, there should be a prima facie opinion and not final opinion or conclusions. मैंने कहा जैसे कि SCN जो है ये हमारा सबसे पहला एक कम्युनिकेशन होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ये एक प्राइमा फेसी ओपिनियन होता है, ये हमारा कोई फाइनल ओपिनियन नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है डिपार्टमेंट की तरीके से, ये एक तरीके से हमें नोटिस इशू किया हुआ है, हमें अपॉर्चुनिटी दी हुई है अपनी बात को कहने के लिए। Primary purpose of SCN is only to put aggrieved person on the notice of the facts. इसका जो पहला और प्राइमरी पर्पस जिसे हम कह सकते हैं वो ये है कि ये नोटिस ऑफ फैक्ट्स और जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं चार्ज के, वो एग्रीव पर्सन को बताता है कि देखो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसलिए हम आपको SCN इशू कर रहे हैं, सो दैट to enable him effectively made it, ताकि हम उस चीज का ही रिप्लाई उनको दे सके। If adjudication order passed without issue of SCN order will be liable to set aside, being contravention of statutory provisions and violation of principle of natural justice. अगर कोई भी ऑर्डर पास किया जाता है बिना इश्यू ऑफ SCN के, तो वो जो ऑर्डर है वो हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के कंट्रावेशन में होगा और उसको बिल्कुल भी हम नेचुरल जस्टिस के उसमें लेकर नहीं जाएंगे, उसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हम एक केस देखते हैं। एक केस था यहाँ पे मैसर्स बल्लभपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 2007-8 SCC 89 सुप्रीम कोर्ट का, held that show cause notice is the foundation of matter of levy and recovery of duty, penalty and interest. Hence, if there was no invocation of rules, valuation rule in this case, it would not be open to adjudicating authority to invoke that rule. ठीक है। अब इन व्यू ऑफ रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ GST एक्ट 2017 और एक इसके साथ रूल हम पढ़ते हैं 142(1), प्रॉपर ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू इशू डिटेल्ड स्पीकिंग एंड रीजन SCN along with summary in form DRC 01 and in the form where prescribed. एक DRC 01 के साथ ही ये SCN भेजा जाता है अगर जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर ऑफिसर के कि हमने कोई भी डिमांड हमारी निकल रही है फॉर इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन प्रोसीडिंग। अब जैसे कि हम देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे, जैसे कि प्रोसीडिंग है हमारी अंडर सेक्शन 52, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 73 नॉर्मल केस में, और अगर हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी निकल रही है अंडर सेक्शन 74 दैट इज अ फ्रॉड केस, tax collected but not paid under section 76, levy of penalty under section 122 for specified offense, levy of interest under section 50, levy of penalty under section 123 for failure to furnish information, imposing fine for failure to furnish information written under section 151. रिवीजन प्रोसीडिंग्स होती हैं अंडर सेक्शन 108 में, जो कि हमारा फॉर्म GST RBN 01 करके जाता है। So far proceeding under section 73 and 74, it is mandatory to issue detailed SCN to person. जो हमारा नॉर्मल केस और फ्रॉड केस है टैक्स लाइबिलिटी के डिटर्मिनेशन में, उसके अंदर जो है वो डिटेल SCN जो है वो हमें इशू करना मैंडेटरी है विद टैक्स अलॉन्ग विद समरी ऑफ नोटिस इन फॉर्म GST DRC 01। DRC 01 में हमें पूरी की पूरी समरी और जितना वो टैक्स हमारे लिए निकाल के दिया हुआ है वो पूरा का पूरा डिटेल जो है वो हमारे पास नोटिस आएगा। इट शुड कंटेन ब्रीफ फैक्ट ऑफ केस, ग्राउंड रिलाइड अपॉन एंड अमाउंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। उस SCN के अंदर पूरा का ये लिखा होगा कि क्या केस था, कौन से ग्राउंड्स पे हमने आपके लिए ये लाइबिलिटी, ये टैक्स का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट किया है और कितना टैक्स और इंटरेस्ट का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है। It should be issued within prescribed time limit under section 73(2) and 74(2). It is clearly provided in section 75(7) that amount of tax
interest and penalty demanded in the order shall not be in excess of amount specified in notice, and no demand shall be confirmed on the ground other than ground specified in the notice. अगर कोई भी और डिमांड जो है वो हम कंफर्म नहीं करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड हमारे नोटिस में दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड निकलेगी। इसके अलावा हम कोई और ग्राउंड पे अपनी नोटिस डिमांड जो है वो पे नहीं करेंगे। However, he has discretion to reduce the amount of tax interest on merit after considering the representation to SCM. उसके बाद डिपार्टमेंट के पास एक पावर होती है कि वो हमारा जो अमाउंट ऑफ टैक्स है या इंटरेस्ट है उसको वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दे या कुछ नेगोशिएशन टर्म्स ले ले, अगर हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसको लाइबल लगती है, उसको रियल लगती है कि यहाँ पे हमने ठीक किया है। Along with SCN, he shall issue a summary of SCN in form DRC 01. SCN के साथ साथ हमारे पास एक समरी भी आएगी फॉर्म DRC 01 के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर हमारे पास लिखा होगा कि ये SCN किसको इशू किया जा रहा है, GST नंबर की डिटेल होगी, एड्रेस होगा, कौन से टैक्स पीरियड के लिए है, विच फाइनेंशियल ईयर है, कौन सा सेक्शन रेफरेंस नंबर है, कौन सा शो कॉज नोटिस रेफरेंस नंबर है। उसके बाद हमारा ब्रीफ फैक्ट होंगे केस के, किस ग्राउंड पे उन्होंने हमें ये नोटिस इशू किया हुआ है, कितनी टैक्स है, कितने अदर ड्यूज हैं, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर्स जो भी हैं वो सब हमारे पास उस पूरे नोटिस में एक पूरा ब्रीफ नोटिस हमें मिलेगा, जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये नोटिस हमारे पास आया क्यों है। अगर हम टाइम लिमिट देखें अपने शो कॉज नोटिस की, तो इन अ केस ऑफ बोनाफाइड डिफॉल्टर 2 years plus 9 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, और मालाफाइड डिफॉल्टर के केस में जो होता है उसमें फ्रॉड या सस्पेंशन वाले जो केसेस होते हैं उसके अंदर 4 years है plus 6 months फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे एक बात जो हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इन केस वेयर टैक्स नॉट पेड बट कलेक्टेड बाय रिसिपिएंट, SCN कैन बी इशूड एनी टाइम विद नो टाइम पीरियड। हमने टैक्स जो है वो कलेक्ट तो कर लिया अपनी पार्टी से, लेकिन अभी हमने डिपार्टमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया है, तो उस केस में हमारा जो SCN है उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो कभी भी डिपार्टमेंट हमें इशू कर सकती है। इसके बाद हमारे पास कुछ नोटिसेस भी रहते हैं जो कि इसी के पार्ट बन जाते हैं। नोटिसेस अंडर GST, जो एक तरीके से कम्युनिकेशन ही होता है GST अथॉरिटीज की तरफ से, जो कि टैक्स पेयर्स को भेजा जाता है उनको रिमाइंड कराने के लिए, उनको अवेयर कराने के लिए कि एनी डिफॉल्ट बिंग नोटिस हो रहा है, या स्पेशली फॉर नॉट फॉलोइंग द GST लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी डिफॉल्ट अगर डिपार्टमेंट नोटिस करती है तो वो हमें वो नोटिस के थ्रू रिमाइंड कराती है। In other cases, notices can be sent out just to collect more information from the taxpayer, या फिर taxpayer से हमें कोई information चाहिए होती है तो वो notices हमें send किया जाता है। Few cases हैं जहाँ पे tax authorities हमें notice send करती है, जैसे कि where any movement of good, provision of services occur without coming under tax lens or taxpayer operates suspiciously, GST authorities act based on any hints collected on verifying the taxpayer's GST returns or received from another government department or from any other third party. A notice can be called by different name. उसको हम शो कॉज नोटिस भी कह सकते हैं, स्क्रूटनी नोटिस भी कह सकते हैं, या फिर डिमांड नोटिस कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ईच केस, द पर्पस ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिफॉल्ट, या फिर एक्शन जो रिक्वायर्ड होता है टैक्स पेयर से, तो उसके अकॉर्डिंग उस नोटिस को हम नाम देके कि शो कॉज नोटिस करना है कि भाई ये डिफॉल्ट हो रहा है, आपका इसके बारे में क्या कहना है। स्क्रूटनी नोटिस है कि आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ योर रिटर्न्स हमें पता चला कि ये प्रॉब्लम्स आपकी रिटर्न्स में आ रही है। डिमांड नोटिस, कोई डिमांड हमारे लिए निकल रही है तो उसके लिए वो नोटिस इशू कर देते हैं। The common ground for receiving notice under GST are lapses on the part of taxpayer, such as not registering under GST when otherwise required under law, non-filing or any delay in filing of GST return, non-payment of GST, short payment of GST, excess input tax credit claims, etc. A taxpayer must promptly act or reply to notice within the time limit specified in such notice. Any failure to do so can land the taxpayer in a legal suit. In such eventuality, the authorities can proceed to prosecute or consider that as a willful default and charge penalty. जब भी हमें कोई भी notice received हो, whether it is online or या offline, वैसे तो GST के जो सारे notices हैं वो GST के portal पे भी show होते हैं, आपको वहीं से उनका reply भी करना होता है, लेकिन जब भी हमें कोई भी notice receive हो, हमें उसका reply within the time करना है।
अगर हमारे पास ऑफलाइन नोटिस आते हैं उसके अंदर टाइम और कौन से सेक्टर में जाना है वो मेंशन होता है। ऑफलाइन अगर हमारे पास ऑनलाइन आ रहे हैं तो वहां पे हमारे पास रिप्लाई करने के लिए ऑप्शन आता है, वो हमें रिप्लाई। तो व्हेनेवर वी रिसीव द नोटिस वी हैव टू रिप्लाई, चाहे हमारे पास उस समय फैक्ट्स अवेलेबल हो या ना हो, जो भी है हम टाइम के लिए भी उनको रिप्लाई कर सकते हैं, बट वी नीड टू रिप्लाई, क्योंकि अगर हमने वो नहीं रिप्लाई किया तो वो हमें कंसिडर कर लेंगे कि हम लोग बिल्कुल डिफॉल्टर है और डेफिनेटली हमारे ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। द ऑफिसर कैन इशू नोटिस अंडर सेक्शन 74 टू मल्टीपल पर्सन फॉर टैक्स शॉर्ट पेड or excess ITC claim by fraud, amended on 21st December 2021, that the officer can confiscate and seize goods or vehicle even after concluding proceeding against all persons liable to pay specific or general penalties. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास मोस्ट कॉमन रीजंस क्या होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये SCN या GST नोटिसेस जो हैं वो आते हैं। मिसमैच इन डिटेल्स रिपोर्टेड बिटवीन GSTR1 एंड 3V, जो कि ऑब्वियसली हमारे पास काफी टाइम से आता रहता है और बहुत बार आता है कि भाई आपकी GSTR1 में फिगर्स ये गई हैं, 3V में ये फिगर्स गई हैं, मिसमैच हो रहा है। इसको हम लोग कह सकते हैं स्क्रूटनी नोटिस। वो लोग एक नाम देके भेजते हैं स्क्रूटनी नोटिस, कि आपकी जब हमने GSTR1 पर्टिकुलर क्वार्टर का या पर्टिकुलर मंथ का या पर्टिकुलर ईयर का ये देखा तो दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस आ रहे थे। या फिर डिफरेंसेस जो बहुत कॉमनली है हमारे ITC में, कि हम 3B के अकॉर्डिंग जो हमने क्लेम 3B में जो हमने क्लेम किए हुए हैं वो हमारे 2A से मैच नहीं हो रहे हैं, हमारी 2B से मैच नहीं हो रहे हैं। इसके लिए ये कॉमनली बहुत नोटिसेस हैं जो बहुत सारी पार्टियों के आपके पास भी आए होंगे और जिनका रिप्लाई देते देते काफी टाइम वेस्ट भी होता है। And delay in filing of GSTR1, GSTR3 भी consecutively for more than 6 months, अगर आप 6 महीने से ज्यादा कोई 1 या 3B फाइल नहीं करते हो तो आपके पास मैसेजेस फ्लैश होने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तो 3 मंथ्स में भी वो लोग मैसेजेस फ्लैश कर देते हैं, मोबाइल पे भी आते हैं, मेल्स पे भी आते हैं। इनकंसिस्टेंट डिक्लेरेशन इन GSTR1 एंड ई-वे बिल पोर्टल। अब ई-वे बिल पोर्टल और आपका GSTR1 भी अगर मैच नहीं करता है तो वहां पर भी वो आपको नोटिस सेंड कर देते हैं कि आपके ई-वे बिल जो है वो इतने बने हैं और GSTR1 में आपकी जो सेल्स की फिगर्स आप दे रहे हो या जो बिल्स का नंबर दे रहे हो वो इतने हैं। तो वो दोनों में भी मिसमैच होता है तो दे सेंड द notice. Non-reduction of prices due to reduced GST rate with effect from the date notified by CBIC. Thereby, a default is committed by taxpayer for non-passing of benefit of reduced prices to the ultimate consumer. The practice is known as profiteering. Several anti-profiteering measures are taken by GST authority to address the default. कई केसों में ऐसा हुआ है जहां पे हमारी GST की जो रेट्स हैं वो रिड्यूस हुई हैं और उस केस में जो हमने टैक्स पेयर ने जो पार्टी से ले लिया है वो उसको वापस करना था अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। तो वहां पे अगर आपने नहीं किया हुआ है आपकी पार्टियों ने तो उसको डिपार्टमेंट ने एक प्रॉफिटियरिंग करके प्रैक्टिस बोला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी वो लोग GST के हमें शो कॉज नोटिस सेंड करते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ GST लाइबिलिटी और द शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स विद और विदाउट द इंटेंट टू डिफ्रॉड। शो कॉज नोटिस जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारी जो लाइबिलिटी थी वो ज्यादा बन रही थी हमारी GSTR1 में, लेकिन हमने 3B में जो है वो कम पे कर दिया है। अनइंटेंशनली हुआ है, ऐसा गलती से भी हो जाता है कभी कभार, और कभी कभी हम लोग पार्टी बोलती है हमारे पास अभी कैश नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, आप फाइल कर दो GSTR1, तो वो लोग फाइल करा लेते हैं और जब टैक्स जमा करने का टाइम आता है 20 को तो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो वो उस केस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, शो कॉज नोटिस आते हैं, रिप्लाई बनाना पड़ता है, एक थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी बढ़ जाती है। GST रिफंड इज रॉन्गली मेड विद और विदाउट द इंटेंट टू डिफ्रॉड। अगेन शो कॉज नोटिस का केस होता है जहाँ पे हमने रिफंड के लिए एप्लीकेशन डाली हुई थी और वो जो रिफंड है वो गलत है, विदाउट द इंटेंट टू डिफ्रॉड। ऑब्वियसली या तो फ्रॉड करने के लिए जो अभी एक काफी अच्छा बड़ा केस हुआ है गुड़गांव वाला, जो सबको हमें पता होगा, रिफंड वाला जो केस था। अब हो सकता है कि हम लोग इंटेंशनली कर रहे हैं या विदाउट इंटेंशनली कर रहे हैं, बट इस केस में भी शो कॉज नोटिस जो है वो हमें इशू हो जाते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो हमने रॉन्गली अवेल कर लिया है या ज्यादा ले लिया है, उस केसेस में नोटिस इशू होते हैं। Where a business is liable but has failed to obtain GST registration and not discharge the tax and other liabilities under the GST Act. Obviously, अगर आपने registration नहीं लिया है, inconsistency in reporting of exports in GSTR1 with information available on IceGate. For example, shipping bill है, bill of export जो है वो IceGate पे है लेकिन हमारे GSTR1 में नहीं आ रहा है। एक्सपोर्ट के केसेस में रहते हैं ये सारे केसेस। For furnishing any information relating to record to be maintained by a taxpayer. Conduct of the audit by tax authorities,
where information written was required to be furnished before tax authorities but not submitted within the time limit stipulated. ठीक है, इन सब केसेस में जो है हमारे पास शो कॉज नोटिस आते हैं. Now I will quickly elaborate some of the notice as their time limitations के साथ. Notice under GSTR 3A. It is a default notice to non-filer of GST return in GSTR 1 or GSTR 3B or GSTR 4 or GSTR 8. In this, we have filed the particular GST return that is yet to be filed along with late fees for the delay and interest on the GST liability, if any. यहाँ पे जो हमारा टाइम लिमिट है वो 15 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग नोटिस. जैसे हमें नोटिस मिलता है उसके 15 दिन के अंदर हमें रिस्पॉन्ड करना है इन सारे केसेस में. कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रिस्पॉन्स विल लेड टू द पेनल्टी दैट इज ऑफ 10,000 और 10% ऑफ द टैक्स ड्यू विच एवर इज हायर. अगर हम 15 दिन के अंदर अपने नोटिस का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे जो हमारी पेनल्टी होती है वो 10,000 होती है, या फिर 10% ऑफ द टैक्स जो भी हमारा ड्यू है, जो भी हायर होगा वो हमें पे करना पड़ेगा. एक ASMT 10 स्क्रूटनी नोटिस जो है वो इशू हुआ है. इस नोटिस के अंदर हमें डिस्पेंसरीज रहती हैं कि GST रिटर्न्स आफ्टर स्क्रूटनी अलोंग विद टैक्स, इंटरेस्ट और एनी अदर अमाउंट पेबल इन रिलेशन टू सच डिस्पेंसरीज इफ एनी. रिप्लाई इन ASMT 11 10 में हमारे पास नोटिस आता है, 11 में हमें इसका रिप्लाई करना है विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब इन द शो कॉज नोटिस और अ मैक्सिमम टाइम ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस और सच डेडलाइन नोटिफाइड. या तो नोटिस के अंदर आपके पास टाइम लिखा होगा, नहीं तो 30 डेज का जो है वो मैक्सिमम टाइम हमारे पास होता है इसके अंदर. उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग ही हमें ASMT 11 के अंदर इसको रिप्लाई करना है. RFD 08 show cause notice as to why the GST refund must not be made to the applicant taxpayer. एक RFD 08 जो है वो show cause notice आता है कि हमें जो रिफंड है वो हमने आपको क्यों नहीं किया है. जब हम लोग रिफंड की एप्लीकेशन डालते हैं और हमारा रिफंड रिजेक्ट होता है या कोई भी क्वेरी उनको आती है कि आप रिफंड किस बेसिस पे ले रहे हो, तो वो RFD 08 में हमारे पास भेजते हैं. अब हमें RFD 09 में जो है 15 दिन के अंदर अंदर उस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करना होता है. ये कुछ नोटिस मैंने अभी आपको बताया. Section 169 of the CGST Act state the different means of communicating the notices under GST. Any other mode of sending out the notice will not be valid under the law. Taxpayer must note the different modes of getting notice can be as follow. जो नोटिस हमें जिस तरीके से रिसीव हुआ है और उसके अंदर जो हमें मोड लिखा हुआ है कि आपको इसको ऑनलाइन रिप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन रिप्लाई करना है. अगर आपको ऑफलाइन जाके डिपार्टमेंट में जाके पर्टिकुलर AC या DC से मिलना है तो आपको वहीं जाके उसका रिप्लाई करना पड़ेगा. हैंड डिलीवरिंग द नोटिस इधर डायरेक्टली और बाय मैसेंजर बाय कुरियर टू द टैक्सपेयर और हिज रिप्रेजेंटेटिव. जहां पे लिखा हुआ है कि आप इसको नोटिस को है हैंड डिलीवर करा दीजिए, कोरियर करा दीजिए, तो आपको वही चीज फॉलो करनी है. बाय रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कोरियर एक्नॉलेजमेंट एड्रेस टू द लास्ट नोन प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ टैक्सपेयर. टैक्सपेयर अपने एड्रेस से जो है वो रजिस्टर पोस्ट भेजेगा. कम्युनिकेशन आप कर सकते हो ईमेल एड्रेस के थ्रू. GST पोर्टल पे भी आप वहां से लॉग इन करके उसको हम लोग रिप्लाई कर सकते हैं. By publication in regional newspaper being circulated in the locality that of the taxpayer based on the last known residential address. यहाँ पे भी हमें भेज सकते हैं वो नोटिस, जो भी उसका रेजिडेंशियल एड्रेस लिखा हुआ होगा वहां पे वो सेंड कर सकते हैं. If none of the above mean is used, then by affixing it some prominent place of business or residence. If this is not found as reasonable by the tax authorities, they can affix a copy on the notice board of the office of the concerned officer or authority as a last resort. अगर डिपार्टमेंट को हमारा पार्टी का कोई एड्रेस नहीं मिल पाता, वो ईमेल के थ्रू नहीं भेज पाते, लॉगिन पे पोर्टल लॉगिन पे वो नहीं देख पा रहा है, नन ऑफ द अबव मींस, तो डिपार्टमेंट क्या करता है, जो पार्टी का ऑफिस है, जो टैक्स पेयर का ऑफिस है, वहां पे जाके वो एक नोटिस को चिपका देता है कि देखो हमने अपनी साइड से नोटिस जो है पहुंचा दिया है, अब पार्टी को रिप्लाई करना है. द टैक्स पेयर नीड नॉट एक्ट अपॉन द नोटिस ऑफ कम्युनिकेशन इफ इट इज रिसीव्ड इन एनी अदर मोड अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज नोटिफाइड बाय GST लॉ. अगर इन सब के अलावा हमें नोटिस मिलते हैं तो हमें उसके लिए नहीं करना है. I'm audible?
विनीता जी आप तो ऑडिबल हैं, लेकिन बीच में कुछ अभी डिस्टरबेंस हुआ है, तो आप कंटिन्यू करिए, फिर देखता हूँ कि आप क्या। जी जी ठीक ठीक ठीक, ओके। Right. Any reply to GST notice can be submitted online on the GST portal. A taxpayer can use the digital signature, e-signature of authorized person of such taxpayer or himself, where the payment of tax and interest is required, pay such liability in the requested form and manner. अच्छा, यहाँ पे एक बात हमारे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम लोगों ने किसी पार्टी के ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल एड्रेस डाला हुआ है, तो आप इमीडिएटली वो एड्रेस को चेंज कर दीजिए, उसमें आप पार्टी का ही एड्रेस डालिए, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि अगर हमने पार्टी को नोटिस भेजा थ्रू ईमेल और पार्टी ने उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया, तो लाइबिलिटी यहाँ पे उसकी बनेगी जिस वो ईमेल पे वो नोटिस गया है। पार्टी तो कह देगी कि भाई नोटिस हमें मिला ही नहीं, हमारे सीए साहब ने हमें बताया ही नहीं, उन्होंने अपनी ईमेल आईडी डाल रखी है, तो उन्होंने हमें बताया नहीं, तो यहाँ पे लाइबिलिटी सीए की बन जाएगी। तो किसी भी इसी तरीके के मैटर में आने से बेटर ये है कि आप ईमेल आईडी चेंज कर दें, क्योंकि जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम ईमेल आईडी डाल दें बिकॉज ऑफ दैट ओटीपी प्रॉब्लम, क्योंकि आप कब तक पार्टी से ओटीपी पूछोगे रिटर्न फाइल करते समय एंड एवरी टाइम। तो कोशिश कीजिए, अगर किसी ने कर रखा है, अपनी ईमेल आईडी डाल रखी है किसी पार्टी के रजिस्ट्रेशन में, तो वहां पे इमीडिएटली आप अपनी ईमेल आईडी चेंज करके पार्टी की ही ईमेल आईडी डालिए। या फिर अगर आपको लगता है कि पार्टी इतनी वेल मैनेजेबल नहीं है कि वो ईमेल आईडी मैनेज कर पाए, तो आप एक नई ईमेल आईडी बनाइए, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड आप पार्टी को जरूर बताओ, टैक्स पेयर को जरूर बताओ, और उनको बताओ कि आप इसको चेक करते रहो, क्योंकि इस पे नोटिसेस आएंगे, और अगर नोटिसेस आए, रिप्लाई नहीं किया, पेनल्टी चार्ज हो गई या डिमांड इशू हो गया, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए डीएससी लगाने से पहले भी, कोई भी रिटर्न फाइल करने से पहले, डीएससी लगाने से पहले आप पार्टी को इन्फॉर्म करें, क्योंकि अगर पार्टी ने एक बार डिनाई कर दिया डिपार्टमेंट के सामने कि हमारी नॉलेज के बिना ये सब हुआ है, तो यहाँ पे जो है केस हमारे ऊपर ही आता है, सीए यहाँ पे फिर लाइबल हो जाएगा। तो after such payment, the reply letter in requested form must be submitted before the tax authority that send notice. In case the taxpayer receiving the GST notice does not reply within the stipulated time limit, he shall be liable for penalties and other proceeding as each case demand under the GST law. As टाइम लिमिटेशन है और ये बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक है, शॉकोज नोटिस है या जीएसटी जो है वो अपने आप में ही इतना बड़ा है कि इतना हम एक टॉपिक पे टाइम नहीं दे पाएंगे, तो मैं आगे प्रोसीड कर देती हूँ अपील्स के लिए। अपील्स के लिए मैं स्लाइड जो है, गिव मी 2 मिनट्स। मैंने ये स्क्रीन शेयर करी है, ये विजिबल है सबको? ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर इन अपील। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अपील क्यों है अपील। इट इज लाइकली दैट अ टैक्स पेयर मे नॉट एग्री विद द एडजुडिकेशन ऑर्डर सो पास बाय द टैक्स ऑफिसर। जब एक ऑर्डर पास किया, 100 को नोटिस आ गया, उन्होंने रिप्लाई कर दिया, उसके बाद भी जो हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी है उनको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो वो एक ऑर्डर पास करेंगे, तब हमारे पास पावर आती है कि हम अपील कर सकते हैं कि हम आपके ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर हमारे पास फैक्ट्स है जिसके लिए हम अपील कर सकते हैं। Equally possible, the department may itself not be in agreement with the education order in some cases. कई केसेस में डिपार्टमेंट भी मान जाता है कि ठीक है आप अपील, आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, हमारे हाथ में नहीं है। इट इज फॉर दिस रीजन दैट द स्टैट्यूट प्रोवाइड फर्दर चैनल्स ऑफ अपील टू बोथ साइड। दोनों ही साइड जो है अपील आप कर सकते हो, मतलब डिपार्टमेंट भी अपील कर सकता है और टैक्स पेयर भी अपील कर सकता है। राइट टू अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट, बट स्टैट्यूट कैन प्लेस रीजनेबल राइडर्स ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दैट राइट। ये हमारा एक लीगल राइट है कि हम अपील कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने एक प्रॉपर
अपीलेट अथॉरिटी बनाई है, वो बात अलग है कि अभी तक जीएसटी डिपार्टमेंट ने 5 साल हो गए हैं, अपीलेट अथॉरिटी अभी तक फ्रेम नहीं हो पाई है। सारे केसेस जो है वो हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं, जिसकी वजह से हाई कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी ओवरबर्डन हो चुका है। जैसे कि हम एग्जांपल्स दे सकते हैं कि टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील, टाइम लिमिट भी है एक अपील फाइल करने की, आप उसके टाइम लिमिट के बाद नहीं अपील फाइल कर सकते हो। एक आपको प्री डिपॉजिट भी करना पड़ता है सर्टेन सम, कुछ अमाउंट जो है 10% ऑफ योर टैक्स है, या फिर जितना भी आप उसका एडमिट कर रहे हो, जितना भी टैक्स आप एडमिट कर रहे हो, जितना भी डिमांड आप एडमिट कर रहे हो, या फिर जितना भी डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका 10% है, वो आपको पहले डिपॉजिट कराना पड़ेगा बिफोर द अपील कैन बी हर्ड। तो हमारे जो स्टेप्स हैं अपील के, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट होता है, अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है तो आप जो है अपील कर सकते हो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे, जो कि हमारा सेक्शन 107 में आता है सीजीएसटी एक्ट के। दूसरा लेवल आता है जब हमारे पास फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आपको पास हुआ, वो भी आपको नहीं मानना है, वो भी हमारा टैक्स पेयर जो है बोल रहा है कि नहीं ये करेक्ट नहीं है, तो हम लोग अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, जो कि सेक्शन 109 और 110 सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग आता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी ऑर्डर अगर हमें नहीं बाइंड होता है, हमें लगता है कि नहीं हम आगे और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, इसका ऑर्डर बाइंड नहीं करना है हमें, तो उसकी जो ऑर्डर है अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है वो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हम डायरेक्टली हाई कोर्ट में ऑर्डर पास नहीं करवा सकते, हम डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जाके अपनी अपील नहीं कर सकते, हमें लेवल वाइज चलना पड़ेगा। वो हमारे सेक्शन 1111 से लेके 116 में आता है सीजीएसटी एक्ट के। अब अगर हाई कोर्ट का भी अपील या ऑर्डर जो है वो हमें नहीं सही लगता है, या हमें लगता है कि नहीं हम जीत सकते हैं इस केस में, तो हम लोग जाएंगे आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जो कि हमारा सेक्शन 117 टू 118 लाई करता है सीजीएसटी एक्ट के। ये एक बनाया हुआ है एक चार्ट सा कि अपील लेटर है कि ऑर्डर अगर स्टेट ऑफिसर का है तो आप स्टेट अपील कर सकते हो स्टेट अपीलेट अथॉरिटी में, और अगर ऑर्डर जो है वो सेंट्रल का है हमारा तो हम सेंट्रल की अपीलेट अथॉरिटी में जा सकते हैं। उसके बाद उन दोनों के आपके ऑर्डर जो हैं वो आप जो हमारी जीएसटी स्टेट एरिया में बनाया हुआ है या फिर नेशनल बेंच पे बनाया हुआ है, वहां से हम डायरेक्ट हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट, ये इस तरीके से आप डाल सकते हो। ठीक है, नेशनल बेंच में जो है वो हम जा सकते हैं अगर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके अगर कोई इशू है, प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके कोई डिस्प्यूट है, तो हम वहां पे जा सकते हैं। और स्टेट बेंच में जो बाकी अदर प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके रहता है वहां पे जा सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है, जिसे हम जीसेट कहते हैं। एज ऑफ टुडे तो बेंचेस हैव बीन क्रिएटेड बाय नोटिफिकेशन ऑफ 21 अगस्त 2019 में जो है ये बेंच क्रिएट की हुई थी, बट अभी तक कोई भी मेंबर अपॉइंट नहीं हुए हैं और अभी तक ये नॉन फंक्शनल ट्रिब्यूनल है। तो ये जो मैटर है अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब हमारे पास टाइम लिमिट क्या रहती है कि जो सिर्फ एग्रीड पर्सन है वो ही अपील फाइल कर सकता है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली हमारे पास शॉकर्स नोटिस आया और हम सीधे चले गए अपील फाइल करने, एक लेवल के साथ हम लोग फाइल करते हैं। अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑर्डर ऑफ द एजुकेशन अथॉरिटी हैज टू बी फाइल्ड विद इन 3 months from the date communication of such decision या order with the appellate authority. Appeal can be condemned for 1 month on valid grounds. जो अपील है वो आप 1 मंथ के लिए और वो लोग कंडेम कर सकते हैं, लेकिन वैलिड ग्राउंड होना चाहिए, तभी वो हमें आगे का एक्सटेंशन मिलता है। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ appellate authority has to be filed within 3 months from the date communication of such decision or order. जो हमें ऑर्डर रिसीव हुआ उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो है हम लोग अपील फाइल कर सकते हैं। किसके साथ? विद जीसेट के साथ। यहाँ पे भी वही है कि अप टू 3 months इन केस ऑफ अपील और 45 days इन केस ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन बियॉन्ड द मैंडेटरी पीरियड। ठीक है, अब नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स कौन कौन से हैं जो कि अपील जहां पे नहीं की जा सकती? एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर और अदर अथॉरिटी एंड पावर टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर, जहां पे हमारे पास कमिश्नर का ऑर्डर आ गया या अदर अथॉरिटी का ऑर्डर आ गया जो कि आपकी प्रोसीडिंग को एक ऑफिसर से दूसरी ऑफिसर पे ट्रांसफर कर रहा है, आप उसके लिए कोई अपील नहीं कर सकते। एन ऑर्डर pertaining to the seizure, retention of books of account, register and other documents, an order sanctioning prosecution under the act, an order passed under section 80, payment of tax and installment. ये कुछ orders हैं जो कि non appealable orders हम लोग इनको
नाम देते हैं। अच्छा, अब जैसा कि हमने देखा था कि अपील करने के लिए हमें कुछ प्री डिपॉजिट कराना पड़ता है अपील फाइल करने से पहले। तो वो प्री डिपॉजिट जो है वो एक कंडीशन है हमारी, आपको अपील अगर फाइल करनी है यू हैव टू प्री डिपॉजिट सम सम। ये प्री डिपॉजिट जो है वो हमारा अंडर सेक्शन 1076 में आता है। इसके अंदर क्या रहता है कि एडमिटेड डिमांड, अगर हमने कोई डिमांड एडमिट कर ली है तो आपको 100% जो है वो उस पर टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन और पेनल्टी जो भी है वो आपको डिपॉजिट कराना है अगर आपने एडमिट कर लिया है। अगर आपने एडमिट नहीं किया है, डिस्प्यूटेड डिमांड है, तो उसका 25% of penalty imposed for cases under 129(3) and 10% of disputed tax up to maximum जो है 25 करोड़ है। 25 करोड़ है मैक्सिमम, तो बाकी डिस्प्यूटेड का आप 10% जो है आपको जमा कराना है। साथ में 25% जो पेनल्टी इम्पोज करी हुई है, जो कि हमारे केसेस रहते हैं 129(3) में, वो हमें पहले डिपॉजिट कराना है अगर हम एपेलेट अथॉरिटी लेवल पे अपील कर रहे हैं। अदर केसेस में क्या रहता है, अपील टू बी डिसाइडेड विद इन 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर अंदर हमारी अपील जो है वो डिसाइड हो जाएगी। अथॉरिटी हैज full power of PO and can reduce, enhance, annual, confirm appeal orders. Appellate authority cannot remand back case to adjudicating authority for fresh look. अगर एक बार ऑर्डर आगे चला गया तो आप फिर उसको appellate authority वापस से नहीं बुला सकती कि हम एक बार फिर से फ्रेश लुक देते हैं। अच्छा, अभी प्री डिपॉजिट हमें जीसेट लेवल पे क्या करना रहता है, ये जो हमारा आता है ये अंडर सेक्शन 1128 में आता है। इसके अंदर भी सेम आपको 100% ऑफ एडमिटेड टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन एंड पेनल्टी, अगर हमने एडमिट कर लिया है, हमने इतनी डिमांड की, हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसका 100% जो है वो आपको पहले प्री डिपॉजिट कराना पड़ेगा। अगर नहीं हमने डिस्प्यूट किया हुआ है तो जो डिस्प्यूटेड डिमांड है हमारी, उसका जो 20% जो है टैक्स का जमा कराना है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो मैक्सिमम दिया हुआ है वो 50 करोड़ दिया हुआ है। दिस इज इन एडिशन टू व्हाट हैज बीन ऑलरेडी डिपॉजिटेड विद एपेलेंट अथॉरिटी। ये आप पहले जमा करा चुके हो एपेलेंट अथॉरिटी के, उसके बाद अगर आप जीसेट लेवल पे जाते हो तो ये उसके एडिशन में आपको जमा कराना है। फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहते हैं हमारे अपील के केस में। अपील विद एपेलेंट अथॉरिटी, जो कि हमारा जाता है फॉर्म GST APL 01, ठीक है, एक फॉर्म रहता है APL 01, उसमें ये हमारी अपील फाइल होती है। एंटायर सेट ऑफ अपील जो है वो 3 सेट में बनती है, along with below documents must be filed physically with appellate authority within 7 days। आपको 3 सेट में जो है ये फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या क्या रहते हैं, ग्राउंड ऑफ अपील, किस बेसिस पे हमने जो है अपील वो प्रिपेयर करी है, क्या स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हमने दिए हैं उसके अंदर, और ऑर्डर अपील अगेंस्ट, किस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने अपील की हुई है। आपने प्री डिपॉजिट कराया है उसका प्रूफ होगा, उसका DD होगा, उसका जो भी आपने ट्रांसफर किया हुआ है या जो भी चेक आपने बनाया है उसका प्रूफ हमारे पास रहना चाहिए, या फिर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट यू वांट टू रिलाई अपॉन एन अपील, या फिर और सारे डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि आपकी अपील के लिए नेसेसरी है, रिटर्न्स हैं, चालान्स हैं, व्हाटएवर, उन सब का आपको एक सेट बनाना है और वो फिजिकली आपको वहां पे सबमिट कराना है। अपील विद GSET जो है वो फॉर्म APL 05 में जाता है। एपेलेंट में हमारे पास 01 में जा रहा है और GSET में हमारे पास 05 में जा रहा है। इसके अंदर भी हमें 3 सेट बनाने हैं एंड सेम ये भी हमें फिजिकली सबमिट करना है 7 डेज के अंदर। और यहाँ पे भी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो रहता है ग्राउंड ऑफ अपील है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, ऑर्डर अपील अगेंस्ट है, प्री डिपॉजिट कराने का जो प्रूफ है। अब यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स और हैं, प्रूफ ऑफ अपील फी अंडर रूल 1105। इसके अंदर जो 1105 में जो हमारे पास वहां पे प्री डिपॉजिट फी, अपील की जो फीस थी उसका भी प्रूफ हमारे को लगाना है, और भी कोई डॉक्यूमेंट जो हमारे अपील को स्ट्रॉन्ग बना रहा है वो हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। In such situation, date of submission of physical document shall be treated as date of filing of appeal। जिस दिन हम अपने डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली सबमिट कर देंगे डिपार्टमेंट में, उसको ही हम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील जो है कंसिडर करेंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 107 में, जो कि हमारी अपील है एपेलेट अथॉरिटी को। अब इसमें सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि एनी पर्सन एग्री बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट or the State Goods and Service Tax Act or the Unitary Territory Act and Service Tax Act by an adjudicating authority may appeal to such appellate authority as may be prescribed within 3 months from the date on which the said decision or order is communicated to such person। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन से पर्सन एग्रीव्ड है इन सब के
एंड एजुकेटिंग अथॉरिटी वो अपील कर सकता है एपेलेट अथॉरिटी में, लेकिन 3 मंथ्स के अंदर। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है अब हमारा यहाँ पे, द कमिश्नर में ऑन हिज ओन मोशन और अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स or the commissioner of union territory tax call for and examine the record of any proceeding in which an adjudicating authority has passed any decision or order under this act or the state goods and service tax act or the union territory goods and service tax act for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said decision or order and made by order direct any officer subordinate to him to apply to the appellate authority. यहाँ पे जो टाइम है वो within 6 months है from the date of communication of said decision or order for the determination of such points arising out of the said decision or order as may be the specified by the commissioner in his order. Subsection 3 अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि where in pursuance of an order under subsection 2 the authorized officer make an application to the appellant authority or such application shall be dealt with by the appellant authority as if it was an appeal made against the decision or order of the adjudicating authority, and such authorized officer were an appellant and the provision of this act relating to appeal shall apply to such application. ये subsection 4 भी same है मेरे को सर अतुल सर अभी कितना टाइम और है मेरे लिए, तो मैं फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करूं। मैम 1 hour सेशन था, तो अभी हमारे पास है टाइम 10 to 15 minutes. You can take your time 10 to 15 minutes to wind up the session. We have also few queries in the chat box, so after session queries raise करें, that would be better. हाँ yes क्योंकि वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो you can take 10 to 15 more minutes to wind up the session. Sure. Okay, before the appellant draft the ground of appeal, a thorough study of GST returns, copies of communication received from the proper officer from time to time, copies of show cause notices, replies filed in response to the show cause notice, copies of orders or proceedings or decision passed by adjudicating authority, copy of appellant order. These are necessary and important for the effective preparation of grounds of appeal. ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जब हम लोग अपील प्रिपेयर करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे पास होने भी चाहिए और उनका जो मेंशन है वो हमारे पास हमने किया भी हो। We have to prepare appealing form GST APL 01, जैसे अभी हमने देखा था, along with relevant documents either electronically or otherwise as notified by the commissioner against which a provisional acknowledgement will issued immediately. या तो हमें electronically फाइल करना पड़ेगा या फिर वो हमें कॉल करेंगे। The ground of appeal and form of verification must be duly signed as specified in Rule 26. जो अपील हमने फाइल करी है वो हमारा जो एसएससी है, जो हमारा टैक्स पेयर है, वो ड्यूली साइंड होनी चाहिए। बिना साइन की अपील जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। The certified copy of the decision or order is to be filed before the appellate authority within 7 days of filing the appeal. जो हमें फिजिकल कॉपी, जो हमें 3 सेट बना के फिजिकली जो सबमिट करने हैं वो ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए, जो साइन जो है वो हमारे एसएससी के उसके ऊपर होने चाहिए। A final acknowledgement indicating the appeal number shall be issued in form GST APL 02 by the said authority. हम लोग अपनी अपील जो है वो APL 01 में फाइल करेंगे और जब वो अपील हमारे डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी तो वो डिपार्टमेंट जो है एक अपील नंबर जो है वो हमें इशू करेगा GST APL 02 में। वो एक एक्नॉलेजमेंट जो है अपील एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें मिल जाएगा। In case the said certified copy is submitted after a period of 7 days, the date of filing of appeal shall
be the date of submission of such copy. Same, अगर हम 7 दिन के अंदर अपील नहीं फाइल करते हैं, उसके बाद फाइल करते हैं, मतलब जिस दिन भी हम लोग अपील फाइल करते हैं, वो डेट जो है वो हमारी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील जो है वो बन जाएगी. The appeal shall be considered as filed only when the final acknowledgement indicating the appeal number is issued. जब हमें GST APL 02 में वो नंबर हमें रिसीव हो जाएगा, वो अपील का एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसीव हो जाएगा, तब हम अपनी अपील को फाइल जो है कंसिडर करेंगे. All appeal must be made in prescribed form along with the required fees. Fee will be the full amount of tax, interest, fine, fee. अभी हम लोगों ने देख चुके थे, जो भी हमने एडमिट किया है उसका 100% है, या फिर 10% है डिस्प्यूटेड अमाउंट का, दैट इज मैक्सिमम टू 25 करोड़ और 50 करोड़ का जो हमें एक रेंज दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग. कुछ हम लोग जल्दी से टिप्स देख लेते हैं अपनी अपील फाइल करने के लिए. This is one of the most important exercise in the whole appellate proceeding. The appellant will keep in mind the scope of tribunal jurisdiction to entertain ground of appeal while drafting the ground of appeal. जब भी हम अपनी अपील बनाएंगे उसके अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो ट्रिब्यूनल में अपील हमने जिसके ऑर्डर पे अपने अपील फाइल कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे माइंड में रहनी चाहिए लिखते समय. और मेमोरेंडम जो अपील का है वो इंग्लिश में ही रिटन होना तो बेस्ट है. आप एक प्रॉपर इंग्लिश में एक अच्छे वर्ड फॉर्मेट में अच्छे से लिखेंगे. जो ग्राउंड्स ऑफ अपील है वो कंसाइज होने चाहिए, जो कंटेंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर और कंसाइज होना चाहिए. ईच ग्राउंड शुड बी गिवन अ डिस्टिंक्ट हेड. और एक पैराग्राफ, आप ऐसे नहीं कि एकदम एक पूरा लेटर से हमने लिख दिया. जो भी हम ग्राउंड रेस कर रहे हैं या जो भी ग्राउंड हमारे खिलाफ रेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो हमें उनको आंसर देना है वो एक प्रॉपर एक डिस्टिंक्ट हेड के अंदर होना चाहिए. अगर हमारे पास 2-3 मैटर हैं तो वो 2-3 मैटर जो है अलग अलग हेड के अंदर क्लियरली कंसाइज कंटेंट्स के साथ लिखा होना चाहिए. ग्राउंड शुड नॉट कंटेन आर्ग्यूमेंट और नरेशन ऑफ एनीथिंग और एनी इवेंट. Even in such argument or narrative are necessary to bring out the nature of dispute. चाहे हमारी आर्ग्यूमेंट जो है या फिर कुछ ऐसा फैक्ट है या कुछ ऐसे नरेशन है जो नेसेसरी है हमारे उस डिस्प्यूट के लिए, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसे कोई भी वर्ड्स या कोई भी ऐसा नरेशन जो है अपनी अपील में ना डाले जहां पे आर्ग्यूमेंट टाइप साउंड कर रहा हो. थोड़ा जो हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो थोड़ी मॉडरेट होनी चाहिए. कुछ आर्ग्यूमेंट्स कंटेन नहीं हो उसके अंदर, कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं हो जहाँ पे डिपार्टमेंट को हम एक तरीके से पॉइंट आउट कर रहे हो. एकदम नॉर्मल न्यूट्रल जो है हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए. ग्राउंड जो है वो नंबर्ड होने चाहिए कंसेक्यूटिवली. एक आप नंबर के उसमें आप इसको डालें, बिल्कुल पैराग्राफ वाइज लिखे बट प्रॉपर्ली नंबर्ड हो ना. एक जैसे एक लेटर हमें रिसीव होता है बट प्रॉपर्ली लिखा होता है, ऊपर नाम लिखा होता है किसके लिए हम भेज रहे हैं, क्या रेफरेंस है, क्या डेट है. उसके बाद एक प्रॉपर जैसे डिपार्टमेंट से इशू होते हैं उसी तरीके से हमें उसे सुंदर सा बना के भेजना है, ताकि जब वो एक बार देखें प्राइमा फेसिया, जब वो उसके ऊपर जाए तो देखें हाँ किसी पढ़े लिखे सीए ने इसको फ्रेम किया हुआ है. और कुछ भी उसके अंदर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हमें यूज नहीं करने हैं कि जिससे पढ़ते ही अपने अथॉरिटी को ये लगे कि भाई ये तो लड़ने के लिए आ गए हैं हमसे. Arguing a case is an art. It can be mastered by practice and more practice. Go to courtroom, ऑब्जर्व करें ग्रेट काउंसिल्स को. मतलब अपील्स अभी हालांकि शुरू नहीं हुई हैं बट ऑब्वियसली अभी 5 साल होने स्टार्ट हो गए हैं. कल परसों 1 जुलाई को हमारा जो जीएसटी है वो लगा था, तो हो सकता है अभी अपील स्टार्ट हो जाए, तो हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए क्योंकि फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स जो हैं वो इतना हमें रिटर्न नहीं देंगी क्योंकि वर्क बहुत ज्यादा हो जाता है. जीएसटी प्रैक्टिस अगर हम लोग करते हैं तो अपील जो है मुझे लगता है एक ऐसा रहेगा फील्ड जो अगर हम लोग मास्टर कर लें तो बहुत अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा. तो आर्ग्यूइंग अ केस इज एन आर्ट और उसको हम मास्टर कर सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस में. तो हमें कोर्ट रूम जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए कि जो ग्रेट काउंसिल्स हैं वो कैसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, कैसे जजेस को अपने ऑब्जर्व करा रहे हैं क्वेश्चंस. ऐसे ही हमें डिपार्टमेंट में जाके वहां पे उनको क्वेश्चंस जो है कैसे हम अपनी क्वेरी जो है वो करें.
Discussing the case before it is argued is also a good idea. और जब हम अपनी अपील जो हम लोग सेंड कर रहे हैं, अगर हम उसको खुद पढ़ लें एक बार, साथ में हम किसी एक कलीग को और एक बार रीड आउट करा लें, ताकि उसके अंदर कोई भी ऐसे वर्ड्स हो या कोई भी एरर हो, तो क्या होता है हम लोग देखते रहते हैं, हमें वो एरर नहीं दिखाई देगा। अगर हम किसी थर्ड पर्सन को देते हैं कि एक बार तुम भी रीड करो, तो वो ज्यादा एरर्स जो है वो शो हो जाते हैं। तो एक बार रिहर्स करें अपनी अपील को फाइल करने से पहले। एंड टॉपिक बहुत वाइड है, अगर इस पे हम बहुत अंदर जाते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे जो एंडलेस है। जीएसटी का एक्ट ही इतना एंडलेस बनाया हुआ है। तो मैं यहीं पे अपना वाइंड अप करती हूँ। दिव्या जी। Yes, Vinita ji, thank you for your wonderful deliberation. We have few queries in the chat box, so if you permit, we can go through them. Yes. We have a question from a member. Question is, I have a question regarding ITC of RCA for financial year 17-18, pointed out in financial 17-18 departmental audit. The RCM paid in June 2022. Can I claim the ITC in GSTR 3B of June 2022? Will this ITC be allowed as ITC of RCM? Available after payment only, yeah. ITC जो है वो RCM की हमारी 17-18 की है और पॉइंटेड आउट हुई फाइनेंशियल ईयर 17-18 में डिपार्टमेंटल ऑडिट में, और RCM जो हमने पे करा है फिर जून 22 में, है ना। कैन आई क्लेम द ITC इन GSTR 3B ऑफ जून 22, यानी कि करंट वाले 3B में हम RCM ऑफ 17-18 का क्लेम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो माय पॉइंट ऑफ ओपिनियन कि हम लोग नहीं क्लेम कर सकते, बिकॉज दैट इज ऑफ 17-18 ऑफ RCM लाइबिलिटी है हमारी, और जून 22 में क्लेम करने के लिए इज दिस अमाउंट इज रियली बिग और सम 10,000 और 20,000, मतलब दिस अमाउंट इज इन थाउजेंड्स और इन लैक्स, ये डिपेंड करता है फिर हम लोग उसको आगे प्रोसीड करें, क्योंकि प्राइमा फेसिया तो हम लोग नहीं क्लेम कर सकते। बाकी अगर हम लोग एक तरीके से कुछ नोटिस या रिप्लाई करके उसको हम लोग देख सकते हैं। Okay, our next question is, can I ask for adjournment to reply show cause notice? If yes, then how? Adjournment to reply show cause notice. If yes, then how? ठीक है, मैं ये ना इनको डायरेक्टली मैसेज कर दूंगी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा आंसर रहेगा adjournment of reply का, right? Okay, ma'am. Then we have a query. I'm receptor. Show cause. I'm in receipt of show cause notice after DRA 01A, but DRC 1 is not served in between. Whether show cause notice is valid? Yes, show cause notice is valid. You have to reply that. Show cause notice will be valid in this case. Yes. We have to reply that. So I don't think we have much further queries. And if any query, they can personally ask you. I will reply them personally. Okay. So thank you, ma'am, for your session. All of us have benefited from the session. So moving towards the next technical session, which we have on key points on TDS along with important amendments, I request CS Swarnim Gupta ji, please. Welcome you, ma'am. A very good afternoon to everyone. First of all, I would like to thank C. Atul Malhotra ji for giving me an opportunity to speak at such a young, early stage of my career, especially on this program, Women's for Wednesday. Thank you to our previous speaker, C. Vinita Agarwal ji, for simply explaining us the show cause notice in GST with important case laws. Now I would like to further proceed. I am taking the topics important amendments in TDS along with special sections in TDS. So firstly, I would like to start with the section 194R. What does the section say? Deduction of tax on benefit of perquisite in respect of business or profession. Like whenever we hear the word perquisites, we compare and we think of salary. But here we are talking about the perquisites which are related to business or professions. I'll explain the topic with the help of an example. As a very common example, as we all know about doctors, all the pharma company provides freebies to all the doctors.
Then the freebies are in form of, at times, they are travel benefits. They are providing gold coins. They are providing cars and number of things. So in this case, this is the perquisite as it is related to business and profession. For example, in case of a manufacturing organization, we have seen, let's take an example of TVS. What happened in case of TVS? TVS will give to its all the dealers and customers benefit, like they will be giving, if they have crossed a particular sales limit, they are giving target of 1 crore rupees and they have completed the target, then they will be given some benefit. That benefit will be in form of a car or gold coin, television, something like that. So in this scenario also, the thing which is involved, this is known as perquisites. So when we are talking about this section, we are talking about all the perquisites which are related to business. So in that case, first we all know that section 28 of PGPP, what was there? The thing is to be included in the income. But what is happening? Most of the people are not showing this amount. The doctors are not showing the freebies which they are getting, and there is in their income. So the government has got this section for this purpose only. Now I would like to proceed. This section is applicable from 1st of July 2022. It is applicable only to the resident recipients. Means जो भी recipient होने चाहिए, जिनको भी हम payment कर रहे हैं, all the doctors, whether in cash or in kind, they should be resident. It is applicable when the amount of the particular perquisite exceeds 20,000 rupees in a financial year. And it has some exceptions also. It is not applicable in case of an individual or HUF if the turnover during the last financial year does not exceed 1 crore in case they are doing business and does not exceed 50 lakh in case they are doing profession. So coming to the crux, this section is applicable to all the people. This is not applicable to individual and HUF if they are not having turnover of 1 crore rupees in case of business, 50 lakh in case of profession. The perquisite amount will exceed 20,000 rupees, and this section is applicable from 1st of July 2022. There were some clarifications. After the section was issued, there were few doubts about the people. They were not confirmed at what to do. So there were some clarifications issued by the government through a circular. The circular was issued on 16th of June 2022. I'd like to discuss all the clarification. First of all, we'll discuss benefit in kind. What do you mean? There were a clarification. People were asking benefit in kind is only there or cash. So the section covers both the benefit in kind as well as the benefit in cash. Suppose if they are giving, the pharma companies are giving the doctors a car, together they are giving some cash also. So both the things are covered. Partly in cash and partly in kind is also covered. Only in cash is also covered and only kind is also covered. All the cases are covered in this. So this is clarified. Nexus with business should be there. Nexus with business means, suppose if I am a doctor and pharma company is giving me freebies. So I am a doctor and pharma company is giving, we are having a nexus. We are having a connection. If the pharma company is giving this same thing to one of my compounder or someone like that, then there won't be a nexus between them. Existence won't be between them. There won't be a relationship. So in that case, the perquisite won't be taxable. Nexus is very important. Now moving on to all our clarifications. The first thing was that, as I discussed, the benefit of the perquisite must be in cash or in kind. So it is clarified that it can be both in cash as well as kind, partly in cash and partly in kind. Then there was a case, it was a question that whether section 194 in 194R, the benefit of perquisite is in the form of a capital asset. So the answer to this question is also yes. If a capital asset is giving, like doctors are getting car or something like that, if a capital asset is given, then also it would be conducted and also be considered as perquisite. It is not important that whether it is given as a capital asset, then we will not consider it as a perquisite. Both, if it is given as a capital asset, if the particular person is taking that perk in the capacity of a capital asset, then also it is applicable. Then third one was that whether sales discount, cash discount and rebates are benefit or perquisites.
Sometimes we get sale discount, cash discount. तो क्या हम इसे perquisite consider करेंगे? So no, it was clarified that it won't be considered as perquisite because sales discount, cash discount जब हम देते हैं तो what happened? It is reduced from the cost. तो ये perquisite नहीं हो जाएगा. दूसरा person भी उसका उतना benefit नहीं ले पाएगा. So it is also cleared. One more thing was there, whether they were asking, suppose if, as I told you, if car, television is giving, a pharma company is giving to a particular doctor, then it would be considered as a perk. But if it is given to a compounder or a particular person there, office staff, then it won't be considered as a perquisite. So it depends to whom the gift or the perk is given. And the nexus with the business is very important. Then there was a provision whether the provisions of section 194R apply when the benefit is given to a government entity like government hospital. So we will see कि जब भी कोई भी benefit हम government hospital या government entity को दे रहे हैं जो कि कोई भी business या profession नहीं carry on कर रहा है, so in that case TDS is not required to be deducted. Government का ये TDS deduct करके we can't give it to the government. So it's very clear कि whenever this benefit is given to doctors, government hospitals, in that government hospitals I will mention government hospital, then in that case this section won't apply. Then there was a question, the valuation, how will we value the perk or the benefit? Valuation is important topic, how to value a perk or a benefit. In that case, it was seen that valuation should be done on the basis of fair market value. Suppose the benefit provider, the person जो हमें perquisite या benefit provide कर रहा है, उसने अगर वो perquisite market से purchase करा है, doctor को pharma company is giving gift to a doctor, a car, and that pharma company has purchased that perquisite from the market, then what will be the price realization condition? The fair market value would be the value of the car. So we'll value the perk with the FMV of the car. In many cases, the company that people are advertising few things. आप देखेंगे जितने भी बड़े-बड़े celebrities हैं और there are small influencers also. What are they doing? They are advertising a particular product. So in that case, what is to be done? इस केस में हमारे पास क्लैरिफिकेशन ये आई है, if that particular product, अगर वो किसी भी particular product का advertisement कर रहे हैं, वो particular product अगर दे दिया जाता है उस particular influencer को, if the company gives that particular product to that influencer, then section 194R is applicable. But अगर वो उसको देते नहीं है, they don't give them, they just give them to ad and take it back, then in that case 194 is not applicable. So this is a very important special thing in case of 194R, in case of social media influencers. What we have studied, if they are giving us back the product to use, then 194R will be applicable because it will be a perk. But if they are only advertising and giving the back, then this section won't be applicable. There was another clarification on the same issue. It was like reimbursement of out-of-pocket expenses. What happened at times? Companies क्या करती हैं? Companies are giving their dealers. You just go. They keep a meeting. Like there is a meeting in which all the people are coming. They are calling it as an education meeting. We all are giving some learnings about few important topics. तो इस situation में क्या होता है कि सब लोग, all the people are gathered. इस situation में the meeting is simply, a get together is simply to educate their dealers, then section 194R is not applicable. But if in case the meeting is not to educate people, it is for the benefit, for giving them some incentive. At times किसी का incentive due होता है organization में employees का. So what they do, वो get together रखते हैं, उसमें वो उनको कुछ incentives देते हैं, और they say कि please come along with your families. You can stay in a good resort or a place for 2 more days, something like that. In such situations, it will be treated as a perk and section 194R की applicability आ जाएगी.
और हम बात करेंगे एट टाइम्स, हमने एक और पॉइंट इसमें पढ़ा था कि रिइंबर्समेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस incurred by service provider in the course of rendering services. What is out of pocket expenses? At times a dealer gives out of pocket expenses in the name of out of pocket expenses, like there are two people. I'll explain this with the help of an example. Suppose TVS जो बोलता है, कंपनी बोलती है अपने एम्प्लॉइज को, और आई शुड नॉट एम्प्लॉय, डिस्ट्रीब्यूटर को बोलती है अपने, कि आप जो है यू गो एंड विजिट दिस पर्टिकुलर एरिया, और इसमें आप चेक करके आइए, यहाँ का देख के आइए सेल्स पैटर्न क्या है, क्या हो रहा है। वो वहां पे जाता है विजिट करने, वो वहां पे जो भी वहां पे जाता है, जो भी सेल्स के बारे में पता करता है कि कैसा है, देयर इज अ मार्केट और नॉट, तो वहां पे जाने के लिए उसको जो भी एक्सपेंसेस देते हैं, सपोज ही इज लिविंग इन 5-star होटल, he is living, the particular person who went, the distributor who went, that particular person is living in a 5-star hotel, having a good lifestyle, he is living there for 4 to 5 days, getting all the facilities. In that case it would be treated as a perquisite. ये हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के नाम से नहीं कर सकते हैं कि यस वी हैव गिवन देम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, आप जाइए हमारे कंपनी के काम से गए हैं. सो दिस वाज अनदर क्लैरिफिकेशन in the section 194R. Moving on to another clarification. Section 194R, जब TDS we like, जब हम बता रहे हैं इसमें TDS डिडक्ट होगा, तो suppose if there is cash, then तो TDS डिडक्ट करना is easy. Suppose if I have to give, if I am a pharma company, I have to give 10 lakh rupees to doctor, then I'll deduct TDS at the rate 10% and I'll pay that to doctor. But in case I am not supposed to deduct 10 lakh rupees, मुझे जो है उनको कार गिफ्ट करनी है, I am not giving them in cash, I am giving them in kind, or if I am giving them in partly in cash and partly in kind, and the portion of cash is not that much कि उससे हमारा TDS की लायबिलिटी निकल आए. So जैसे मैंने बोला कार गिफ्ट कर रहे हैं, if one person, जब हमारा फार्मा कंपनी है वो कार गिफ्ट कर रही है डॉक्टर को, तो इस सिनारियो में क्या होगा, तो इस सिनारियो के लिए हमारे पास क्लैरिफिकेशन आया कि सबसे पहले हमें TDS कार की वैल्यू पे पे करना है, तो कार की वैल्यू, वरना कार रिलीज नहीं करेंगे. तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन आया, देयर आर टू वेज जो भी हमारे लिए फाइनेंशियली मोर फिजिबल रहेगी वो हम देखेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहली चीज, यू जस्ट गो टू द डॉक्टर एंड डिस्कस विद हिम कि यू हैव टू पे एडवांस टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ कार. आप उस कार की वैल्यू पे 10% का जो TDS है एडवांस टैक्स की तरह आप उसको पे कर दीजिए. द सेकेंड थिंग इज दैट कि आप क्या करो, आप उसको पे करो. सपोज कार की वैल्यू 10 लाख रुपीज थी, आपने उस पर 10% के अकॉर्डिंग TDS कैलकुलेट करा, तो इट वुड बी 10,000 रुपीज. 10,000. सो अब आप एक बात ध्यान रखिए, यू आर पेइंग 10,000 फ्रॉम योर ओन पॉकेट. सो TDS आप 10,000 पे नहीं पे करेंगे, you will be paying TDS on both the value. First, the value of the car plus the value of TDS. उसका 10% आप पे करेंगे. टोटल परक्विजिट उसको आपसे क्या मिला, टोटल पर्क तो आपको दो चीजें मिली ना, दोनों ही चीजें मिली, कार भी मिला, कार के साथ साथ उसको दूसरा परक्विजिट क्या मिला जो आपने उसके बिहाफ पे TDS पे किया. सो इन दिस सिनेरियो ये डबल गेन है, तो इसमें उस टोटल की वैल्यू को रखते हुए ही हम लोग आगे पे करेंगे. फाइन. देन दिस ऑल्टरनेटिव इज, अब आपके पास ये जो ऑल्टरनेटिव है, सी इस ऑल्टरनेटिव में फिजिबल इकोनॉमिकली हमारे लिए कौन सा होगा, हमारे लिए फिजिबल तो यही होगा कि हम लोग इसको कैसे पे करें, उससे पे करवाएं, कि जो भी हमारे डॉक्टर हैं या जो भी, अगर फार्मा कंपनी के केस में डॉक्टर हो गया या कोई और TVS के केस में मैंने बताया आपके डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, तो वो पे कर दें, तो दैट विल बी मोर फिजिबल. तो इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे और एज पर आर कैलकुलेशन हम आगे उसको पे करेंगे. So that was all about section 194R. I would like to discuss, I'd like to highlight all the important points in this once again. पहली चीज क्या होती है, ये it is applicable on perquisite relating to business. क्या रेट है, it is 10% रेट है. अगर 20,000 के above perquisite की वैल्यू होती है, then it is applicable to everyone except in the case of individual and HUF if they are doing business and profession and their turnover is less than 1 crore in case of business and less than 50 lakh in case of profession. This section is applicable both in cash and in kind. If the person is getting perk in cash or in kind, or partly in cash, partly in kind, in both the cases, this is applicable. Then the next thing, when we want to discuss how to deposit the TDS is to be deposited by the person giving the gift.
The person who is paying is responsible to deduct the TDS. But as we know कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब वो कार दे रहे हैं, as I told you, कार दे रहे हैं, तो what will they do? ये सिचुएशन में क्या करेंगे, ये पहले उनसे बोलेंगे कि प्लीज पे मी. If they are not paying them, तो they'll ask them कि आप एडवांस टैक्स के तरीके से पे कर दीजिए, or else they will pay TDS from their own pocket, and TDS will be paid on both the amount of TDS which they will pay on their behalf, plus along with the perquisite, the car or whatever they are giving them. Fine. Then what we studied, there should be a nexus between the business. Nexus होना चाहिए business के between में, जैसे फार्मा कंपनी और डॉक्टर, टीवीएस और डिस्ट्रीब्यूटर, तो रिलेशनशिप होना चाहिए, नेक्सस शुड बी देयर. ऐसे ही बिना रिलेशनशिप के यहाँ पे हम वो चीज नहीं देखेंगे. वैल्यूएशन की जब हमने बात करी थी, हम लोग किस वैल्यूएशन पे करेंगे, तो वैल्यूएशन के बारे में हमने बोला था कि पहली चीज हम देखेंगे, अगर बाहर से ले रहा है, the person who is giving the gift is purchasing it from outside, then in that scenario वो लेंगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू. अगर the particular person is manufacturing the same goods, तब उस सिचुएशन में क्या करेंगे, वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे, उसकी फेयर द वैल्यू जिसमें वो कस्टमर्स को सेल करते हैं. They will not take the manufacturing cost, they will take the cost at which they are selling it to other customers. Arm length price. Fine. फिर हम लोगों ने बात करी थी इसमें कि हम लोग इसमें कैपिटल एसेट को भी इंक्लूड करते हैं. जरूरी नहीं है आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है एज अ कैपिटल एसेट, देन आल्सो द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194 आर एप्लीकेबल. ट्रैवल बेनिफिट्स हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो टेलीविजन, मोटर कार, एनीथिंग, these provisions are applicable. One thing in this section is applicable from 1st of July. So there were some doubts that अगर 1st of July से ही applicable है, तो suppose हमें कोई पर्क जो अप्रैल से लेके जून तक सिचुएशन रही है, वहां पे अगर हमें कोई अमाउंट मिली फ्रॉम अप्रैल, ट्रांजिशन पीरियड की हम बात जैसे कर रहे हैं, फ्रॉम अप्रैल टू जून, सपोज आई गॉट 15,000 अप्रैल से जून तक उस पर्टिकुलर पर्सन को पर्क्विजिट दिया गया. अब उसके बाद तब तक नहीं लगा टीडीएस, बट जैसे ही हमने उसको बाद में लिमिट हमारी 20,000 की क्रॉस हुई, तुरंत हम उसे पे कर देंगे. लाइक सपोज फ्रॉम आई एम टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम 1st of April to 30th June, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को 25,000 का पर्क्विजिट्स हो गए हैं, तो क्या टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है? नहीं. इन दैट केस टीडीएस हमने नहीं पे किया है. बट 1st of July अगर हम 100 रुपीज का भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो पूरा 25,100 में टीडीएस पे करना पड़ जाएगा. सो दिस इज द थिंग. 1st of July से एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन हम लोग बैक से देखते चलेंगे और 20,000 के ऊपर जो भी अमाउंट होती है उसमें हम पूरा पे करते हैं. बट 20,000 के ऊपर हम पे करते हैं, बट 25,000 प्लस 100 इस पूरी ही अमाउंट पे हम टीडीएस पे करेंगे. फाइन. देन मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्रिप्टो करेंसी के बारे में. जो क्रिप्टो करेंसी के हमारे पास आए हैं अमेंडमेंट्स, टीडीएस का सेक्शन आया है 194S. सो वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट दैट. क्रिप्टो, वी ऑल नो दैट इन दिस बजट हमारे क्रिप्टो को एक रिकॉग्निशन मिला है. दैट इज अ वेरी गुड थिंग. वी ऑल नो क्रिप्टो थ्रू द नेम ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट. दिस सेक्शन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of July 2022. तो जब हम टीडीएस की बात करते हैं तो ये ट्रांसफर में होता है, ट्रांसफर पे लगता है. जब भी हम लोग अपनी वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर करेंगे, तब हमारे पास टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी. अच्छा, क्रिप्टो का सेल परचेज कैसे होता है? दिस इज ओवर द काउंटर होता है कि एक्सचेंजेस के थ्रू होता है? एक आदमी आया, उसने अपना क्रिप्टो लिया, दूसरे को सेल कर दिया. इज इट रियली वेरी इजी कि क्रिप्टो का ऐसे ही सेल परचेज हो गया? 0.1% आर सच टाइप ऑफ केसेस. सेलर और बायर इतनी आसानी से नहीं मिल जाते हैं क्रिप्टो की कि वो आ गए उन्होंने एक्सचेंज ले लिया. सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग थ्रू एक्सचेंज. एक्सचेंजेस हमारे पास दो हैं, कई हैं, बट आई एम टेकिंग द नेम ऑफ WazirX एंड DCM. सो इनके थ्रू क्या होता है? क्रिप्टो होता है. क्रिप्टो का जो भी एक्सचेंज होता है, दो तरीके होते हैं. एक हो गया ओवर द काउंटर और दूसरा हो गया थ्रू एक्सचेंज. अब क्रिप्टो करेंसी की जब हम सेल की बात करते हैं, तो बताइए इसमें टीडीएस कौन पे करेगा? I am selling my crypto. I am selling my crypto. Then what will happen? Buyer, the one who is, but buyer is always required to deduct. जो buy कर रहा है वही पेमेंट करेगा. Obviously, this is always in the scenario. जो buy कर रहा है वही पैसे देता है. तो buyer is required to deduct TDS. Buyer TDS deduct करेगा seller को पेमेंट करते टाइम. Then
अब बायर में भी हमारे पास, हम लोग यहाँ पे बात करिए, हम लोगों ने स्पेसिफाइड पर्सन को, बायर विल ऑलवेज डिडक्ट टीडीएस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, दो तरह के स्पेसिफाइड पीपल होते हैं। पहला स्पेसिफाइड पर्सन है, अगर हम स्पेसिफाइड पीपल की डेफिनेशन की बात करें तो स्पेसिफाइड पर्सन वो होते हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ, जो बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में दो लोग आते हैं, पहले इंडिविजुअल और एचयूएफ जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, दूसरे इंडिविजुअल और एचयूएफ जो बिजनेस कर रहे हैं बट उनका टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस एंड 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन। सो पहली चीज तो हमने ये क्लियर करी कि whenever we discuss about specified person, it is very clear we are talking about only individual and only HUF. Then what is the TDS? What is the percentage of TDS required to be deducted? 1% is the TDS required to be deducted. Again, I'm starting from the very starting. 1% TDS is required to be deducted by the buyer on transfer of crypto. In case of a specified person, there is a exemption of amount of rupees 50,000. अगर जब भी हम बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं स्पेसिफाइड पर्सन की, तो जब ग्रेटर देन 50,000 होगा तब हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं, और जब हम बात करते हैं नॉन स्पेसिफाइड पीपल की तो 10,000 के अबव हम उसमें टीडीएस डिडक्ट करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने वी ऑलवेज थिंक कि व्हाई स्पेसिफाइड पीपल को इतना एग्जेम्पशन दिया हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो ये वही लोग हैं जिनको टैन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। See, for specified people, for individual and HUF, it is very difficult to complete all the compliances. उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि सारी कंप्लाइंसेस करें। जब हम बात करते हैं ट्रस्ट की, कंपनीज की या किसी पार्टनरशिप फर्म की, तो उनके लिए कंप्लाइंसेस पूरा करना इज इजी। बट wherever we are talking about these people, non specified person, एक इंडिविजुअल के लिए, एक सैलरीड एम्प्लॉय जो क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहा है, जो उसमें ट्रांसफर कर रहा है, उसके लिए चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम ना, उनके लिए कंप्लाइंसेस थोड़े हार्ड हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसको स्पेसिफाइड पीपल के केस में हम लोगों ने इसको एग्जेम्पशन रखा है कितने का, 50,000, एंड फॉर नॉन स्पेसिफाइड पीपल इट इज लाइक 10,000। नाउ आई टोल्ड यू ऑल दैट, जैसे कि हमने बताया कि ओवर द काउंटर लाइक सेलर एंड बायर, ऐसे ट्रांजेक्शंस बहुत ही कम होते हैं। देयर आर वेरी लेस ट्रांजेक्शंस। जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस हैपन थ्रू एक्सचेंज। तो इसके बारे में भी, सेक्शन आने के बारे में भी कुछ सर्कुलर्स आए हैं, हम लोग सर्कुलर्स डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट, द फर्स्ट सर्कुलर में जो क्लैरिफिकेशन आया है वो पहला ये था कि जब भी हम लोग क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो जो भी बायर है, जो एनीवन इससे नहीं यार जान, हाँ यार नहीं फोन उठाया यार उन्होंने। जब भी हम क्रिप्टो का कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इस क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन में जो भी बायर है, बायर जो भी पे कर रहा है वो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, ठीक है, सेलर का। तो जब भी सेलर और बायर दो लोग हैं तो इन दैट केस बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। Then when the transaction is happening through exchange, WazirX, DCMX, in situation में कौन करेगा, exchange will come in between. Exchange is required to deduct TDS. In this case, liability ना ही हमारे seller की है, ना ही हमारे buyer की है। जब exchange involve हो जाता है तो exchange की responsibility होती है, क्योंकि exchange, we make the transaction happen through exchange. The seller does not know who is the buyer, the buyer does not know who is the seller. We all enter in the transaction through exchange. So in that case, the liability to deduct TDS is of exchange. Fine. Then a third clarification was that at times it happened कि there is a person A, there is a person B, there is a exchange E. अब exchange का एक broker है, that is C. A, B, exchange is E, and there is a person C जो exchange का broker है। तो ये ट्रांजेक्शन ब्रोकर के थ्रू हो रहा है, तो इन दैट केस हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। अनदर, यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन आया, अगर ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज में ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, देन आइदर ब्रोकर और एक्सचेंज दोनों में से कोई भी टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में, दैट हु विल बी द पर्सन रिस्पांसिबल टू डिडक्ट टीडीएस, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन डिडक्ट्स टीडीएस। सो वी हैव स्टडीड केसेस। फर्स्ट केस, जब भी हम लोग बात करते हैं ओवर द काउंटर के बारे में,
इन द केस ऑफ ओवर द काउंटर हमेशा बायर TDS डिडक्ट करेगा। जब हम बात करेंगे ये ट्रांजेक्शन हो रहा है एक्सचेंज के थ्रू, तो इस केस में हमेशा कौन TDS डिडक्ट करेगा? एक्सचेंज विल डिडक्ट TDS। द थर्ड क्लैरिफिकेशन वाज दैट व्हेन द ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग एंड द ब्रोकर इज आल्सो इन्वॉल्व्ड, इन दैट सिनेरियो कौन डिडक्ट करेगा TDS? एक्सचेंज और एक्सचेंज और ब्रोकर में आपस में डिस्कशन होगा और उन लोगों में से पूरा दे वुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, आपस में वो लोग करेंगे और वो TDS डिडक्ट करेंगे। दिस इज द थिंग। अब नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन कि चलिए ठीक है, जब हम लोग डिडक्ट करते हैं TDS जब INR में हमारा क्रिप्टो हो रहा है, INR में हो रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है, इस केस में तो INR में हमने TDS डिडक्ट कर दिया, एक्सचेंज भी INR में कर देगी और हमारा अगर ओवर द काउंटर है तब भी हमारे पास हो जाएगा, ब्रोकर अगर कर रहा है तो भी हो जाएगा। बट द केस इज देयर जब हमारे पास क्रिप्टो की जगह क्रिप्टो ट्रांसफर हो रहा है। सपोज वन पर्सन इज सेलिंग बिटकॉइन एंड द अदर सेलिंग बिटकॉइन एंड द अदर पर्सन इज परचेजिंग, आई शुड से, एक देयर इज अ सपोज देयर इज एक्सचेंज, आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। दो लोग इन्वॉल्व हैं, ए है और बी है, दो लोग हैं, तो एक जो है वो हमारे पास बिटकॉइन दे रहा है, जो दूसरा इंसान है वो भी उसकी तरफ बिटकॉइन 10,000 की वैल्यू की वो दे रहा है, सेम जो है वो हमारे पास दूसरी क्रिप्टो दे रहा है। तो इस सिनेरियो में जब क्रिप्टोस आपस में एक्सचेंज हो रही हैं, तब इस केस में हम TDS कैसे डिडक्ट करेंगे? दिस कम्स देयर हियर कम्स द प्रॉब्लम कि इस केस में हमारे पास हमें ये नहीं समझ में आता कि हम क्रिप्टो अब इसमें कैसे डिडक्ट करें, क्रिप्टो का हम इसमें क्या सिनेरियो रखें, कैसे हम करें। इट्स अ थिंग लाइक क्रिप्टो इज एक्सचेंज ना, INR इज नॉट इन्वॉल्व। तो इस केस में हमारे पास एक देयर वाज अ क्लैरिफिकेशन, जो हमें क्लैरिफिकेशन मिला है, देयर वुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एक्सचेंज होगी, वेदर इट इज WazirX, DSM, जो भी एक्सचेंज है, वो क्या करेंगे, वो अपने पूरे दिन के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उसका सम अप करेंगे 12 बजे तक, 12 AM, वहां तक जितने भी हैं वो उसका सम अप करेंगे। वो देखेंगे उनके पास कितने बिटकॉइन है, कितने डॉगी कॉइन है, कितने कॉइन्स हैं, उसके जो अदर देन INR है, INR वाले ट्रांजेक्शन तो इजिली हो जाएंगे। INR सपोज किसी ने सेल बाय करा INR के थ्रू, दैट इज डन। यहाँ पे हम वो बात कर रहे हैं जब हमारे पास हम क्रिप्टो में के बदले क्रिप्टो लाइक बिटकॉइन की जगह हम डॉगी कॉइन की जगह हम बिटकॉइन ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, इस केस की हम बात करते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्लैरिफिकेशन आया, क्या करेंगे, एक्सचेंज जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो करेगा, वो कहता है कि 12 AM तक पूरे दिन में, आप सुबह से लेके आप 12 से 12 का उसका शेड्यूल रहेगा, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो उसका टोटल कर देगा, INR के सिवा जितने भी थे उनका मार्केट ऑर्डर प्लेस करेगा, उन सबका मार्केट ऑर्डर प्लेस करेगा, और उस अमाउंट पर जो भी पर्टिकुलर अमाउंट आएगी उस पर TDS डिडक्ट हो। सो व्हाट इज द सिनेरियो, टोटलिंग करी गई, उसके बाद करा गया, जो भी टोटल आया उस अमाउंट पर हमने TDS डिडक्ट करा। इट इज द काइंड ऑफ एक्सचेंज, ये सब यही हो जाता है ये, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे, जब भी एक्सचेंज हो रहा है डॉगी कॉइन की जगह बिटकॉइन की जगह, तो इस सिचुएशन में हमारे पास TDS, हम ये नहीं है कि हम TDS डिडक्ट कर दिया बिटकॉइन का, हमने TDS डिडक्ट कर दिया, नो। इसलिए सिनेरियो में हम लोगों ने क्या करना है, ऑलवेज उसका मैंने जैसे बताया वो 12 to 10 क्लैरिफिकेशन आया है, करेगा, उसके बाद वो टोटल करेगा, उसका मार्केट ऑर्डर प्लेस करेगा, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे TDS डिडक्ट करेगा और वो TDS डिडक्ट करके उसको पे करेगा। सो दिस वाज द थिंग। अब जब हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो के बारे में, तो हम क्रिप्टो हम ऑल ऑफ अस नो कि हम लोगों ने इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट का, इसको गवर्नमेंट ने बोल दिया, हमारे इस बजट में वर्चुअल डिजिटल एसेट इसको बोल दिया गया है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट के साथ जितनी भी इन्होंने डिडक्शन, TDS भी डिडक्ट होगा। तो TDS डिडक्ट होने के बारे में इन्होंने जो भी चीजें थी हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग वाज दैट सेलर और बायर, कौन पे करेगा, बायर हमेशा TDS डिडक्ट करेगा, क्योंकि बायर इज द वन हु इज पेइंग द सेलर, जो पे करता है वही करेगा। देयर वाज अ लिमिट 10,000 के ऊपर फॉर नॉन स्पेसिफाइड पीपल, and for specified person it was 50,000 above. What are specified people? Individual and HUF not carrying on business or profession, or individual and HUF carrying on business or profession which are having a turnover of less than 1 crore rupees in case of business and less than 50 lakh rupees in case of profession. Fine. And what was the thing? There were confusions. ये transaction मैंने बोला over the counter 0.1% होते हैं, बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन है over the counter नहीं होते हैं। They all happen through exchange. There are exchanges जिनके थ्रू ये ट्रांजेक्शन होते हैं। पहले हम लोगों ने बात करी थी WazirX की, और हम लोगों ने बात करी DCM की। इनके थ्रू जितने भी होते हैं हमारे ट्रांजेक्शन ये होते हैं।
फाइन। फिर हमने बात करी कि इसमें क्या होता है, अगर हम लोग कन्वर्जन की जब बात करते हैं, तो अगर जो भी if there are three parties involved through exchange, then exchange will require to deduct TDS. अगर exchange हमारे पास नहीं involved है, then in scenario हमारे पास जो भी बायर है वो TDS डिडक्ट करेगा। अगर बोथ एक्सचेंज एंड ब्रोकर आर इन्वॉल्व, तो इस सिनारियो में हम लोग क्या करेंगे, जो भी ब्रोकर है और जो एक्सचेंज है, दे विल डू अ कॉन्ट्रैक्ट, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दैट वुड बी रिटन कॉन्ट्रैक्ट। वो डिसाइड करेंगे कि कौन डिडक्ट करेगा TDS और कौन डिडक्ट TDS नहीं करेगा। फाइन, जो भी लायबल होगा डिडक्ट करने का वो कर देगा। देन देयर वाज अ थिंग, जब INR में एक्सचेंज नहीं हो रहा है, क्रिप्टो ट्रांसफर हो रहा है, एक क्रिप्टो की बदले दूसरी मिल रही है, तो इस सिनारियो में दोनों ही सेलर बायर हो गए, दोनों ही सेल, एक सेल कर रहा है एक बाय कर रहा है, परचेजर तो कोई नहीं हुआ। तो इस सिनारियो में ये आया है कि हम लोग टोटल करता है, जो भी एक्सचेंज होता है जिसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन होता है, वो टोटल करता है जितने भी उसके ऑर्डर्स थे, फिर वो मार्केट ऑर्डर जब उसके टोटल हो जाते हैं, तब फिर वो उसका रिलीज करता है। जब पैसे आ जाते हैं, जो उसका भी ऑर्डर होता है, उस अमाउंट पर वो TDS डिडक्ट करता है। It is always 1%. Then moving on to our next section, I would like to take 194C. These were the sections in which major amendments were there, like 194R. 194R के बारे में बहुत सारे clarifications आए हैं, बहुत सारी चीजें आई हैं। 194R is actually very important. 194S की जब हम बात करते हैं, तो 194S यूजुअली वी आर नॉट हैविंग मच क्लाइंट्स, जिनसे हम क्रिप्टो के क्लाइंट्स मेरे पास तो नहीं है, एंड आई थिंक क्रिप्टो के क्लाइंट मार्केट में इतने अभी शायद ना अवेलेबल हो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाइक अस, व्हिच वी डोंट हैव दैट मच ऑफ बिजनेस और दैट मच ऑफ एक्सपोजर। सो दिस इज फॉर 194S is all the for the people जिनका क्रिप्टो में क्लाइंट्स है, जिनके क्लाइंट्स क्रिप्टो में डील कर रहे हैं। बट 94R जो सेक्शन है, दैट इज फॉर एवरीवन। इट्स वेरी नाइस सेक्शन। इसमें जितनी भी चीजें हैं ये हम लोग अप्लाई करेंगे, तो इट्स लाइक इट्स अ वेरी गुड सेक्शन। ये हर जगह, क्योंकि TDS की कंप्लाइंसेस अगर नहीं होती हैं, तो वी आर हैविंग ह्यूज पेनल्टीज। तो बहुत ज्यादा कंप्लाइंसेस नहीं होती हैं, तो इसको हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। देन मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट सेक्शन, आई विल गो विद सेक्शन 194C. And it's 194C, and before 194C I would like to take 194A also, क्योंकि 194A जो इंटरेस्ट का सेक्शन है, उसमें इंटरेस्ट के बारे में लाइक काफी चीजें, इंटरेस्ट सब आजकल सभी इंटरेस्ट में डील कर रहे हैं। सेक्शन 193 was for interest on securities and section 194 was for interest and A, interest other than interest on securities. तो ये भी अच्छा सेक्शन है, we can cover this section also. So 194A, interest on interest other than interest on securities. इसमें हम बात करते हैं किस किस को एप्लीकेबल होता है। ये हमारे पास पेयर कौन होता है, एनी पर्सन इन दिस सिनेरियो आल्सो, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल इन HUF। ये देखिए हर बार क्या हुआ, इन्होंने जब भी पेयर इंडिविजुअल एनी पर्सन करा है, इंडिविजुअल HUF को जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है बिजनेस में और प्रोफेशन में 50 लाख से कम है, उसको एक्सक्लूड करा है। क्यों इन्होंने एक्सक्लूड करा है? बिकॉज ये देख रहे हैं कि इंडिविजुअल और HUF के लिए इतनी कंप्लायंसेस करना डिफिकल्ट है। सो टू मेक इजियर फॉर देम, इन्होंने हमेशा इनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन रखा गया है। सो व्हेनेवर द पेयर इज एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF की हम बात कर रहे हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ एंड 50 लाख था, पे इज ऑलवेज अ रेजिडेंट पर्सन, देन सेक्शन 194 is applicable. What is the rate? It is 10%. अच्छा, इंटरेस्ट कितना होता है? When the amount exceeds 5,000 rupees, कोई भी इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, अगर 5,000 से ज्यादा होता है over the year, then section 194A is applicable. Interest on saving, it is having some exceptions also. Like when we talk about interest on savings bank account में सबको पता है उसके इंटरेस्ट कोई भी अमाउंट होती है, TDS is not required to be deducted. When interest is paid by firm to a partner, अगर फर्म कभी भी अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है, then in that interest also TDS is not deducted. Then we are discussing about income tax, interest on income tax refund. Income tax refund पे जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी हम TDS नहीं डिडक्ट करते हैं, so we don't deduct TDS on interest on income tax refund मिलता है। फर्म जब अपने पार्टनर को कुछ पे करते हैं, हम TDS उसमें नहीं डिडक्ट करते हैं। इंटरेस्ट अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को हम देते हैं ओवर द ईयर, दैट इज 5,000 रुपीज, टिल 5,000, देन TDS इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। नाउ वी कमिंग टू बैंक। जब भी बैंक में आप कोई FD करवाते हैं, तो FDR से जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे TDS डिडक्ट करते हैं। देन देयर इज आल्सो अ लिमिट
कि क्या लिमिट है 40,000 रुपीज। अगर 40,000 रुपीज से ज्यादा आपका इंटरेस्ट रहता है एनुअल कोई भी आप टाइम डिपॉजिट कराते हैं, कोई भी आप एफडीआर कराते हैं, उसमें आपको मोर देन 40,000 रुपीज अगर होता है इंटरेस्ट, तब आपका टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। एंड द सेम लिमिट इज 50,000 rupees in case of senior citizen. Fine. Then we are discussing about interest on zero coupon bonds. Zero coupon bonds सबको आइडिया होगा। जीरो कूपन बॉन्ड्स पे भी इंटरेस्ट जब हम पे करते हैं तो उसमें टीडीएस नहीं डिडक्ट होता है। सो बेसिक चीज जो हमने पढ़ी सेक्शन 194A के बारे में, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट डिडक्ट होता है ऑन ऑल द थिंग्स अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इसमें क्या क्या नहीं हमने कवर करा, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड हमने नहीं कवर करा, जीरो कूपन बॉन्ड का हमारे पास एग्जेम्पशन है, इनकम टैक्स रिफंड का एग्जेम्पशन है, अगर फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देती है उसका भी एग्जेम्पशन है। देन 5,000 ओवरऑल अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है टोटल और वो 5,000 से लेस है, दिस इज ऑल्सो कवर्ड, तभी आपको क्या करना है, इट इज लेस देन 5,000, दिस इज ऑल्सो कवर्ड, तभी भी आपको एग्जेम्पशन है। When we discuss about banks, अगर बैंक में आप सेविंग्स बैंक अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स बैंक अकाउंट पे, उस पे भी आपको कोई भी टीडीएस नहीं पे करना है। देन कमिंग व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट एफडीआर, तो अगर आपकी कोई भी एफडीज जो है, एफडी पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है दैट एक्सीड 40,000 रुपीज, देन टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। 50,000 रुपीज इज द केस इन केस ऑफ अ सीनियर सिटीजन। नाउ कमिंग, जब भी हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट इज गिविंग टू बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनी, स्किल डेवलपमेंट फंड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, बैंक हो गई, कोऑपरेटिव बैंक हो गई, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हो गया, इनको आप कभी भी इंटरेस्ट देते हैं तब टीडीएस रिक्वायर्ड डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। देन वन मोर थिंग, जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, one cooperative society is giving interest to the other cooperative society, or one cooperative society is giving interest to their members, then also TDS is not required to be deducted. अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को देती है तभी भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट देती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को देती है, देन आल्सो टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। Coming on, when we are discussing about cooperative society, we should discuss about cooperative banks as well. तो अगर cooperative bank भी देती है दूसरी को तो भी TDS रिक्वायरमेंट डिडक्ट करने की आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस केस में भी। There is a case law I would like to refer. केस लॉ के बारे में हमारा यूको बैंक का केस लॉ है। दिस केस लॉ, इसमें I find this case law good, तो मैं इसको एक बार डिस्कस करूंगी। I would like to explain this with the help of example. जैसे there are two brothers, or I should say we are two, me and my sister, we both are having an argument over the property of my mother. कोई प्रॉपर्टी है मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी और हम दोनों के आपस में आर्गुमेंट है कि क्या होगा, किसका उससे रेंट आ रहा है। दैट प्रॉपर्टी इज गिविंग रेंट ऑफ 1 लाख रुपीज पर मंथ। सो आई विल एक्सप्लेन द सिनेरियो अगेन। मी and my sister, we both are having a paternal property of my father, my mother. That property we both are having argument कि उसका जो भी रेंट है वो किसका होगा। देयर इज अ डिस्प्यूट कि किसकी प्रॉपर्टी है। तो इस केस ये डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट तक गई है। तो अब जब कोर्ट के पास वो डिस्प्यूट जाती है तो व्हाट कोर्ट हैज डन, कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया है और उस पैसे की एफडी करवा दी है बैंक में। व्हाट कोर्ट हैज डन, वो डिस्प्यूटेड अमाउंट जो भी आ रही है उसकी एफडी करा दी है, रजिस्ट्रार को उसका हेड बना दिया है। अब जब बैंक को तो required and the payment is made to the registrar, तो इस केस में हमारे पास डिसीजन आया नो, द बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। बैंक टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगी जब उस एफडी से जो इंटरेस्ट आ रहा है उसका पेमेंट रजिस्ट्रार को होगा, कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। इस सिनेरियो में एक चीज होगी, जब भी डिस्प्यूट खत्म हो जाएगी और जिसके भी पास वो इनकम टैक्सेबल होगी, जिसकी भी वो इनकम होगी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट खत्म होने के बाद, जो भी ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का डिक्लेयर, उसको जब वो पैसा मिलेगा तब टीडीएस डिडक्ट होगा। टिल द टाइम नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय द बैंक। फाइन, लेट्स मूव टू अनदर सेक्शन व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट वाज सेक्शन 194। one more thing I can discuss in this section, like in case of a minor child, उसके पेरेंट्स डिजीज्ड हैं, इन दैट केस व्हाट हैपन, टीडीएस जब हम बात करते हैं उसको कोई भी इनकम हो रही है तब क्या होगा, तो इन दैट केस माइनर चाइल्ड है, उसके पेरेंट्स डिसीज्ड हैं, तो टीडीएस विल बी रिक्वायर्ड, टीडीएस विल बी डिडक्टेड उसी माइनर चाइल्ड के पैन पर जब तक कि कोई पर्सन अपॉइंट नहीं कर दिया गया है।
तो दिस इज अ स्मॉल थिंग कि माइनर चाइल्ड के पेरेंट्स आर डिसीज, तो टीडीएस जो है उस माइनर चाइल्ड के ही पैन पे डिडक्ट होगा। फाइन, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गेन स्कीम। आप लोगों ने सुना होगा कैपिटल गेन स्कीम वेयर द डिपॉजिटर हैज डिसीज्ड। कैपिटल गेन स्कीम में हम जो पैसा डिपॉजिट करते हैं और अगर उसका जो डिपॉजिटर है वो डिसीज्ड हो गया है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर बिकॉज द डिपॉजिटर इज डिसीज्ड, तो जब तक कि डिपॉजिटर की डेथ नहीं हो जाती, जब तक कि हमें कोई और पर्टिकुलर पर्सन हमें नहीं मिल जाता है, तब तक हम उसी की जो भी डिपॉजिटर है उसके पैन पे ही हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे, जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती है। आफ्टर दैट जब आगे जो भी अमाउंट है, जब भी हम लोग नया पर्सन अपॉइंट कर लेंगे, टीडीएस हम तब डिडक्ट करेंगे। फाइन, देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेक्शन 194C. I like to discuss few things about 194C. I guess our session is going to over. So 194C, everyone knows that it is a section on contracts and subcontracts, including work contract. So in this scenario also the same thing, the payer is any person. ये हमेशा हम लोग ध्यान में रखेंगे, तो कभी भी हम डाउट नहीं होगा। During the starting time of my practice, so when I was studying, it used to happen, मैं थोड़ा सा confused हो जाती थी। अच्छा exception हाँ, other individual and HUF ये वाला case। Then I realized कि these are the persons जिनको टैन लेने की requirement नहीं है, for their compliances, for कि किसी कोई problem ना हो, उनके ऊपर compliances का burden ना आए, इसलिए इनको exclude करा गया है। So individual or HUF who are carrying business or profession and their business income does not exceed 1 crore in the previous financial year and professional income does not exceed 50 lakh rupees, उनको ये section नहीं, उनको TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड पेई इज ऑलवेज अ रेजिडेंट पर्सन। इसमें रेट क्या होता है, अगर पेई इंडिविजुअल HUF है, फाइन, देन इट इज 1% and other cases में 2%. So for individual HUF, the rate is 1%. For other person paying, if the payee is individual HUF, then the rate is 1%, and in other cases the rate is 2%. Fine. इसमें जो TDS के points हैं, कोई भी TDS हम डिडक्ट नहीं करेंगे. No TDS is required to be deducted for a single contract if its value is up to 30,000 rupees. For aggregate contracts in a previous year is up to 1 lakh rupees. Suppose there is a person with which we are dealing, तो अगर उसका एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी वैल्यू 30,000 है, 30,000 से कम है, इन दैट सिनेरियो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS. लेकिन अगर उसका एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 30,000 से ज्यादा है, तब हम TDS डिडक्ट करेंगे. और अगर सपोज वी आर हैविंग उसके 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 25,000 करके उसके साल में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उनकी वैल्यू 1 लाख से ऊपर हो गई है, तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, वी आर सपोज टू डिडक्ट TDS. Fine. No TDS is required to be deducted if a contract is for personal purpose of individual or HUF. Like personal purpose के बारे में हम बात करें, so there are like किसी की शादी है and that particular person has given a contract. Wedding contract में किसी wedding planner को बुलाया है, उसको पूरा contract दिया, उसने हर चीज plan करने का. So is TDS required to be deducted in that scenario? No, इसमें TDS नहीं deduct करने की जरूरत पड़ेगी because it is for the personal purpose. अब कोई भी जो personal purpose का contract है, whether individual or HUF, then no TDS is required to be deducted. Then we'll discuss something job work के केस में. Job work के केस में हम लोग को TDS required deduct करने की requirement होती है. There is one thing about advertisement agency. I would like to discuss about advertisement agency. इसमें क्या होता है? There's a three people are involved. Consumer. Suppose I am the consumer company. मैं consumer हूँ, and if I am going to a advertisement agency, मैं जब एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पे कर रही हूँ, तो आई विल डिडक्ट TDS. If I am paying to advertisement agency, I'll be deducting the TDS. Then when advertisement agency, अब advertisement agency भी TV channel से वो link होगी ना. There's a chain: consumer company, advertisement agency, and TV channel. 3 people are interlinked. So I'll be paying to the advertisement agency. Advertisement agency क्या करेगी? वो अपना % of share का commission जो भी काट के वो जाएगी टीवी चैनल के पास. सो व्हेन आई एम पेइंग टू एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, आई डिडक्ट TDS. बट जब एडवर्टाइजमेंट एजेंसी टीवी चैनल को पे करेगी, तब वो TDS उसमें नहीं डिडक्ट करेगी. दिस इज द थिंग इन 194C. देन वन थिंग वाज देयर लाइक पेमेंट्स बाय ब्रॉडकास्टर और टेलीकास्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस फॉर प्रोडक्शन कंटेंट. ये एक चीज थी
जैसे सपोज ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ, बहुत महाभारत आ रही थी, एवरीवन वाज वाचिंग इट, एवरीवन वाज देयर। तो क्या होता है, व्हेन द कंटेंट इज प्रोड्यूस्ड as per the specification of the broadcaster, telecaster and copyright, the content is also transferred to them। क्या इस केस में 194C लगता है? जैसे सपोज उन्होंने बोला देयर इज अ थिंग, एक कंपनी ने बोला बालाजी टेलीफिल्म से कि आई वांट यू टू क्रिएट अ न्यू महाभारत। उन्होंने एक न्यू महाभारत क्रिएट करी। इन दैट केस इट इज लाइक उन्होंने टोटल सब कॉन्ट्रैक्ट, जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पूरा क्रिएट करा। इस सिनेरियो में टीडीएस डिडक्ट होगा। बट अगर उन्होंने बोला कि भाई आपके पास जो महाभारत है आप दे दीजिए मुझे, आपके पास ऑलरेडी यू आर हैविंग दैट, हम उसको क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, तो इससे ना हम उसको दोबारा चला देंगे, टेलीकास्ट कर देंगे। सो इस सिनेरियो में टीडीएस नहीं डिस्कस होगा। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द सेशन। Thank you, CS Swarnam Gupta ji, for the wonderful deliberation. You have explained the sections 194R and S beautifully with practical examples, so it would have been easy for the participants to understand. We have just one query in the chat box, so if you permit, I can raise it to you. Yes, ma'am, sure. The query is, if the recipient says that he will pay advance tax, then also do we need to deduct TDS? No, then we don't need to deduct TDS. It is done from his end, then we don't need to deduct TDS. Okay. So now we Thank have. you so much. Thank you. So now we have CS Saloni Gupta ji from Meerut, a young and dynamic member. So I request her to please present formal vote of thanks. Thank you, CA Chandra ma'am, for giving me such an opportunity first and passing it on to me. Hope I'm audible to all. Good evening, everyone over here. First of all, I'd like to say that it's been such an honor to be a part of such WW series that has been organized by CIRC team. And I'd like to present my heartfelt gratitude towards both of our speakers of the day, who has delivered such great topics by CA Vinita Agrawal ji, first on the topic showboard notice and how to prepare appeals, and secondly by CA Swarnam Gupta ji recently on the topic key points on TDS with important amendments. So I like to say that both of them has taken such a great effort and delivered such topics and also solved the queries of our honorable CA members who has been here for the day. And now I'd like to thank to our session chairperson, ma'am, CA Bindu Nigam ji, who also shared her experience of 30 plus years and given us such knowledgeable things to share with. Then thereafter, I'd like to present my thanks to CA Atul Mehrotra sir, who has given all the immense knowledge to all of us and like delivered this session to us. Then at last, I'd like to say my thanks to moderator CA Divya Chandra ma'am for organizing this event so nicely, and it has been a very knowledgeable for all of us. And at the last, I'd like to thank my CA members who are present over here, and they have listened to us such in a great way and been so patientful to us also. I like to say happy CA Day to all of us that has been upcoming on the 1st July. So thanks from my side. Thank you, Saloni ji. Thanks to our speakers, Vinita ji, Swarnam Gupta ji, for this wonderful deliberation, and utmost thanks to our chairman, CIRC Atul Mehrotra sir, so for giving us this opportunity to interact with each other, to interact with the members. We have a lot of participants. Thanks to you. वैसे मैं दिव्या जी आपके साथ जुड़ा रहा हूँ, बीच बीच में थोड़ा इधर उधर फोन पे रहा, लेकिन मुझे आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों ही स्पीकर हमारे बहुत अच्छे से किए, और मैं भी कुछ चैट बॉक्स में देख भी रहा था कि वेरी वेल डिजाइन। तो मैं हमेशा यही कोशिश कर रहा हूँ, और अब सारे मेंबर जो अभी मेरे साथ हैं, इस समय 236 लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है, मैंने नंबर भी डाला है चैट बॉक्स में, जो भी फीमेल मेंबर्स या मेल मेंबर्स, हमारे दूसरे भी वर्चुअल मीटिंग चलती रहती हैं, कोई भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज फील फ्री टू कॉल मी, बिकॉज मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत बड़े बड़े स्पीकर को तो हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स में सुनते रहते हैं, लेकिन ऐसे नई जनरेशन के लोग आगे कैसे आएंगे और उनको कैसे मौका मिलेगा। तो अंडर माई चेयरमैनशिप, अंडर माई टेन्योर, ड्यूरिंग माई टेन्योर, मेरा उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को हम इनकॉर्पोरेट करें और वो उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर लेके आए और वो मेंबर्स के ज्ञान वर्धन में अपना सहयोग करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को सीए डे की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिव्या जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वेरी ब्यूटीफुली मॉडरेटिंग द सेशन। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। Thank you. Happy CA Day in advance to all of you. Happy CA Thank you. Day everyone.